اس ناول کا خلاصہ آپ سن لیجیے۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح خلاف توقع بات کہہ کر اس نے انہیں چڑھا دیا تھا۔ میں لے کر آئی تھی تمہیں، جس کے ساتھ آئی تھی اس سے کہو کہ آ کر تمہیں لے جائے۔ بہت بڑے بنگلے میں رہنے والی عنایا خاتون بات بہت چھوٹی کرتی تھی۔ کہانی بن گئی تھی، کہیں کوئی جھول، کوئی کمی یا خامی نہ تھی۔ منزہ اور جہانگیر دونوں گھر پر نہیں تھے، چوکیدار چھٹی پر خانسامہ کوارٹر میں، اور لاؤنج میں دروازے کھڑکیاں بند کیے ریان جہانگیر اور تانیہ سلمان اور بنتکار عنایا خاتون تھیں، تو پھر کوئی کسر کیسے رہتی؟ تانیہ روتی گڑ گڑاتی رہی، چلاتی رہی، کہیں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت سا ناول جو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، اس کا نام ہے پرخار راستوں پہ بہار۔ تو چلیے پھر اس ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پورے 5 سال 6 مہینے اور 27 دن کی بیماری کے بعد اس کی اماں اپنے نازک سے وجود کے ساتھ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں، اور وہ جو کتابوں، سہیلیوں اور خوابوں سے ہاتھ چھڑا کر اپنی ماں کی پٹی سے کئی سالوں لگی رہی، تو بالکل خالی ہاتھ ہو کر ٹکر ٹکر اماں کی خالی چارپائی کو دیکھا کرتی، یا پھر بولائی بولائی سے اس 5 مرلے کے مکان میں گھومتی پھرتی، اس کمرے سے اس کمرے، باورچی خانے سے برآمدوں تک اور صحن سے ڈیوڑی تک کا راستہ وہ دن میں نہ جانے کتنی بار ناپتی، پھر تھک جاتی تو سب ستون سے لگ کر صحن میں پھیلی دھوپ کو سمٹتے اور شام کے سائے اترتے ہوئے دیکھتی۔ پہاڑ سا دن سرکتا تو یہ لمبی سی رات آن پڑتی، جسے اپنی بے خواب آنکھوں سے کاٹتے کاٹتے پہلی اذان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ کیا ساری مصروفیات اماں کے ساتھ ہی تھیں؟ اتنے کام تھے ان کے؟ صفائی ستھرائی، جھاڑ پونچھ کے بعد کلاک کی سوئیاں دیکھتی۔ ابا بھی اس سے کوئی خاص ہم کلام تو نہ ہوتے تھے، بس لگی بندھی باتیں۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ میرے لیے 1 کپ چائے، صبح کے لیے کپڑے تیار کر دینا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ پہلے سے مصروف رہنے لگے تھے، اب گھر دیر سے آتے تھے، شیو روزانہ بنانے لگے تھے، جوتوں کی پالش اور کپڑوں کی استری کا خاص خیال رکھتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، شاید اماں کی بیماری نے انہیں خود پر توجہ دینا بھلا ہی دیا تھا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ پھر ایک دن کم گو سے ابا نے اس سے خاصی طویل گفتگو کی۔ اس نے بہت سنجیدگی، مدبرانہ انداز میں بیٹھ کر ابا کی ایک ایک بات کو بہت توجہ سے سنا، لیکن وہ ان کی باتوں کو کوئی خاص سمجھ نہیں پائی تھی۔ خبر نہیں ابا کی باتیں مشکل تھیں یا انہیں سمجھنے کے لیے اس کی عمر ناکافی تھی۔ تاہم وہ چپ چاپ بنا کوئی سوال کیے سر ہلاتی رہی۔ ایک اکلوتی بیٹی ہو تم میری، نہ کوئی بہن نہ بھائی، کل کلا مجھے کچھ ہو گیا تمہارا میکا ہی سمجھو تباہ ہو گیا۔ کوئی بھائی ہی ہوتا تمہارا تو اب دیکھنا لوگ تو میرے مکان اور جائیداد پر قبضہ کرنے کا ابھی سے سوچنے لگیں گے۔ پھر تمہاری شادی کر دی تو مجھ سے رنڈوے کو یہاں ٹکیا پکا کر دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ کاش تمہارا کوئی بھائی ہوتا تو۔ ابا کی ٹھنڈی آہوں مایوسی نا امیدی سے متاثر ہو کر ٹپا ٹپ آنسو بہانے لگی تھی۔ مت رو میری بیٹی، مت رو، اللہ بہتر سبب بنائے گا۔ ابا نے اس کا سر تھپکا، اور اللہ نے جو سبب بنایا وہ بنا سنورا ہنستا کھلکھلاتا اگلے روز ہی ان کے آنگن میں موجود تھا۔ تب اسے گزشتہ روز ابا کی کہی گئی سب باتوں کی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ چھت پر سے سوکھے کپڑوں کا ڈھیر لیے اتر رہی تھی جب ابا زرد رنگ کے شوق سے لباس میں سجی سنوری عورت کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ بیٹا، یہ تمہاری نئی ماں ہے۔ فوری تعارف؟ ہاں، رشتہ تو ماں کا ہی بنتا ہے، تو مجھے آپا کہہ لیا کرنا۔ عمر میں تو مجھ سے چند سال ہی چھوٹی لگتی ہے یہ۔ آپا نے فوراً ہی عمروں کا تعین کرنا شروع کر دیا تو ابا کھلکھلا کر ہنس دیے، خلاف عادت۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ ابا ایک نئے جوش و جذبے سے اس کی نئی ماں اور آپا کو گھر کا کونا کونا دکھانے لگے تھے۔ وہ کتنی دیر وہیں صحن میں کھڑی رہی۔ وہ اکیلی نہ کھڑی تھی، اماں، اس کی اپنی اماں اس کے ساتھ کھڑی تھی، اس کا کندھا تھپک رہی تھی، دلاسا دے رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں ناتوانی سے اترتی چلی آ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کپڑوں کا ڈھیر بیڈ پر الٹا، پھر بیڈ پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تانیہ، تانیہ، ابا پکار رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تانیہ؟ آپ کی بیٹی کو ہمارا یہاں آنا غالباً اچھا نہیں لگا۔ نئی ماں کا باواز بلند اپنے خیالات کا اظہار۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔
अब्बा की शर्मिंदा सी आवाज़। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। अब्बा, मेरे अब्बा। इसे अब्बा से किस कदर मोहब्बत थी, अब अपने प्यारे अब्बा को अपनी वजह से शर्मिंदा होते देखती क्या। वो झटपट बाहर निकल आई। बाल जो ज़रा देर लेटने से थोड़े से उलझ गए और जर्द पड़ता चेहरा जिसे कोई भी नज़र भर कर देख लेता तो इसकी अंदरूनी कैफियत को समझ लेता, मगर वहाँ देखने की फुर्सत किसे थी। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, लपक कर बावर्ची खाने में घुस गई थी। ज़रा सी देर में बावर्ची खाने के स्लैब पर मुख्तलिफ शॉपर सज गए थे। अब्बा बेकरी से होकर आए थे और वो कमरे में थे। वो कपकपाते हाथों से ट्रे से जाने लगी। चपली, कबाब, पेस्ट्री, रोल, पिज़्ज़ा, चूल्हे पर रखी चाय पक पक कर कड़वी होने लगी। तब अब्बा ने पुकारा, तानिया, चाय में कितनी देर है। खुद भी चले आए थे। ट्रॉली उनके हवाले करके बावर्ची खाने में ही ठहर गई। अम्मा को मरे हुए आज इसने दिनों महीनों का हिसाब लगाना चाहा, मगर सब कुछ गलत सलत हो रहा था। तारीखें गुडमुट हो रही थीं। हम लोग कुछ देर तक आते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और खाने का इंतज़ाम कर लेना। रात में हम सब इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। अब्बा इसे खुद से लिपटाए कह रहे थे। अब्बा के मलबूस से उठती महक कतई नामानूस थी। शायद अब्बा ने कोई नया परफ्यूम। अब्बा की कमीज़ के बटन से उलझा एक लंबा बाल इसकी नज़रों के सामने लहराया तो लाशौरी तौर पर उनसे अलग हो गई। अब्बा हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और बावर्ची खाने की जालीदार खिड़की से लगी उनकी चौड़ी मजबूत पुश्त को देख रही थी। तभी वो दोनों सहन के बीचों बीच रुक गए। आपा ने हाथ बढ़ाकर अब्बा की कमीज़ पर लहराता वो बाल खींचकर परे फेंका और शायद कोई हल्की सी सरगोशी भी की। जवाबन आस पास गिरे तो उनकी मर्दाना हंसी शाम के इस पहर देर तक आंगन में गूंजती रही। इसकी नज़रें इस बाल पर थीं जो हवा के साथ लहराता अब सहन के सुरमई फर्श पे चिपक गया था। घर कितना गंदा गंदा सा लग रहा है, जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ। रात तक आपा भी आएगी अब्बा के साथ, क्या सोचेगी। इसकी नज़रें भटक भटक कर इस लंबे बाल का तवाफ़ करती रहीं। तंग आकर इसने सब काम छोड़ छाड़ कर सहन में खूब पानी बहाया। इतना पानी कि वो लंबा बाल पानी के साथ बहता हुआ नाली के जालीदार ढक्कन के अंदर कहीं बह गया। शाम के वक्त झाड़ू। अम्मा इसकी अपनी अम्मा तनबीह करती रही। वहीं बरामदे में खड़ी, लेकिन वो सुनी अनसुनी करती शड़ाब शड़ाब झाड़ू चलाती रही। बाहर आ गई थी। आंगन की परली दीवार के साथ लगे शहतूत के सारे दरख्त बोर से लद गए। ऐसी ही बाहर इसे लगता था अब्बा पर भी उतर आई है। पहले से तनोमंद हो गए थे। सफ़ेद रंगत वाले चेहरे से खून छलकने लगा था। बहुत अरसे बाद उनका बावर्ची खाना अनवा अक़साम के खानों की खुशबू और कलाई में पहनी चूड़ियों की खनक से आबाद हुआ था। आपा के हाथ में जायका बिलाशुबा कमाल का था। बिरयानी, कबाब, कढ़ी, कोफ्ते बनाना इसके बाएं हाथ का खेल था। और ये सब चीज़ें बनाने खिलाने में आपा ने इसके हाथ से डोई भी बड़ी आसानी से हथिया ली थी। जिसके हाथ में डोई होती है, घर और ख़ानदान पे राज भी उसी का होता है। अब इस घर पे वही हुक्मरानी करेगी। तुम्हें कोई तंगी तुर्शी महसूस होती तो भाईजान से कहकर मेरी तरफ चली आना। खाला भी तो माँ बराबर होती है। खाला ने फ़ोन पर इसे समझाया था। नहीं, मुझे भला क्या तंगी तुर्शी होगी। इसने बहुत स्वभाव से इन्हें और ख़ुद को बहलाया था। वो तो बड़े आराम और आसानी से आने वाली को सब कुछ सौंपती जा रही थी। सब कुछ इसी का तो है। दिन में कई बार ख़ुद को तसल्ली देती जब आपा इसे खाना खुद निकाल कर देती, जब बावर्ची खाने के बेशतर कैबिनेट्स को ताला लगाती, जब माचिस, बर्तन धोने का साबुन, सर्फ, शैम्पू और चीनी जल्दी ख़त्म होने पर इससे इस्तफसार करती, जब चाय बनाने के लिए पतीली में दूध खुद डाल कर देती, तब भी वो यही सोचती, ये सब कुछ इसी का तो है। तानिया बावर्ची खाने में थी। आपा इसके कमरे में आकर कह कर गई थी, तुम सब्ज़ी और प्याज वगैरह काट दो, पकाऊंगी मैं खुद। अगला पैगाम तब मिला जब वो बावर्ची खाने में आकर सब्ज़ी धो रही थी। लहसुन अदरक भी चॉप कर लेना, मैं भी आती हूँ। और अब वो बावर्ची खाने में थी। सब्ज़ी, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ज़रा धनिया ही तो साफ़ करने वाला रह गया था। वो पत्ते चुनने लगी। अम्मा इसकी अपनी अम्मा ने हौले से मेज़ बजाई। तानिया ने नज़रें उठाई तो वह धनिया की सब्ज़ डंडियों की तरफ इशारा करने लगी। आपा को पसंद नहीं, वो कहती हैं सिर्फ पत्ते चुन दिया करो। और मसूद जो इसकी खोज में बावर्ची खाने में चला आया था, पहले हैरान हुआ, फिर बेख्तियार ही हंस दिया। अरे, तुम अकेले में भी बातें करती हो? वो इसके सामने बैठकर पूछने लगा। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया था।
اور عموماً ایسا ہی ہوتا تھا، وہ جواب میں کچھ نہیں بولتی تھی، صرف مسعود بولتا تھا، اور تانیہ کو وہ لڑکا بڑا عجیب سا لگتا تھا جو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر کہا لگاتا تھا، اسے گہری آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ وہ آپا کا کزن تھا جو اس کے آنے پر یوں ہی ادھر سے ادھر کھسک جایا کرتی تھیں، کبھی کمرے میں گھس جاتی تو کبھی کسی پڑوسن کا حال دریافت کرنے نکل جاتی، اور وہ بھی ایسی ہی ایک تنہا سی شام تھی جب مسعود آیا اور آپا کسی کام سے چھت پر چلی گئی۔ مسعود اپنی ہی کسی بات پر ہنسا اور اسی ہنسی میں وہ تانیہ کے اس قدر قریب چلا آیا کہ تانیہ کو اس سے خوف آنے لگا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا تو کبھی بھی نہ تھا، پھر بھی اس لمحے تانیہ کو اپنے چہار جانب پھیلا ہوا محسوس ہوا۔ وہ زرد روشنی سے بچنے کی کوشش میں بھاگی تو ابا سامنے کھڑے تھے، عین تانیہ کے سامنے، اور وہ بھاگ کر ان کے سینے میں سما گئی۔ ابا اسے بازوں میں بھینچے مسعود کو خونخوار نظروں سے گھورتے رہے، یہاں تک کہ وہ گھر کا بیرونی دروازہ پار کر گیا اور وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس رات اس نے پہلی بار ابا کے کمرے سے ہنسنے باتیں کرنے کے سوا کچھ اور آوازوں کو سنا۔ یہ ابا کی دہاڑنے کی آواز تھی اور آپا کی سسکیوں کی، اور اس نے رات کی تاریکی میں دو ناموں کو بار بار سنا تھا، مسعود اور تانیہ۔ وہ اپنے بخار زدہ رش اور اترتے بدن پر کمبل لپیٹے، کانوں پر ہتھیلیاں جمائے لیٹی اگلے کئی روز تک اٹھ نہ سکی تھی۔ مسعود بھی اگلے کئی دن تک گھر میں نظر نہیں آیا تھا۔ نیلے آسمان پہ سفید مہین سے بادل ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ چیل اپنے لمبے پر ساکت کیے فضا میں گول دائرے بنا رہی تھی۔ وہ کتنی دیر آنگن میں چارپائی پر لیٹی خالی ذہن خالی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی رہی، حتیٰ کہ دروازے پر دوسری بار دستک ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر دروازے تک گئی۔ کون؟ میں خاور، آپا بازار گئی ہیں، اس نے کہا، پھر آنے والے کا جواب ہی نہیں سنا، یوں ہی الٹے قدموں لوٹ آئی، اور یہی بات رات کے ہنگامے کا سبب بن گئی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی کھانے کی ٹرے ابا کے کمرے میں پہنچا کر آئی تھی۔ آپا کی طبیعت ناساز تھی، بظاہر تو ہٹی کٹی نظر آتی تھی، خدا جانے کیا مسئلہ تھا۔ سارا دن بازار میں گھومتی رہیں، تھک گئی ہوں کہ اس نے وہیں تک سوچا جہاں تک وہ سوچ سکتی تھی، اور پھر جیسے دھواں اٹھتا ہے، بہت ہولے آہستگی سے، پھر بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ابا کے کمرے سے اٹھنے والی دھیمی آوازیں شور اور شور سے ہنگامے میں بدل گئیں۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے سے نکلی اور تھر تھر کانپتی ابا کے دروازے سے لگ گئی۔ میرا ماں جایا تھا وہ، جسے دروازے سے ہی الٹے پاؤں لوٹا دیا گیا۔ کیا ہوں میں اس گھر میں؟ کیا حیثیت ہے میری؟ اپنی بیٹی کے کرتوت چھپانے کو مسعود کا داخلہ بند کر دیا، خاور کو دروازے سے اندر نہیں آنے دیا۔ میرا سارا میکہ یوں ہی چھڑوا دو گے تم؟ کل کوئی اور آئے گا تو اس پہ کوئی نیا الزام لگ جائے گا۔ ارے دو بول نکاح کے پڑھوا کے تانیہ کو رخصت کیوں نہیں کر دیتے؟ اس دو چھٹانک کی لڑکی کے پیچھے میں تو اپنے سارے رشتے کھو دوں گی۔ وہ ابا کی بات سننے کی منتظر تھی۔ ابا شاید تھک گئے تھے، خاموش رہے۔ اتنی دیر تک وہ تھک ہار کر آنگن میں آ بیٹھی۔ چاندنی دیواروں کو اجلا کر رہی تھی، مگر وہ اندھیرے میں گویا چھپی بیٹھی تھی۔ اماں اس کی اپنی اماں باہیں پھیلائی دور کھڑی سے بلاتی رہی۔ اس نے ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ بہت چالاک ہیں، ہمیشہ دھوکہ دینے آ جاتی ہیں۔ خاور رفیہ کا بھائی ہے، سگا بھائی، تمہیں چاہیے تھا اسے گھر میں بلا لیتی۔ صبح ناشتہ کرتے وقت ابا نے اسے کہا تھا۔ آپا گھر پہ نہیں تھیں تب بھی؟ اس نے بس ایک سوال ہی کیا تھا۔ ابا کو جانے کیا ہوا کہ ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں پٹک کر ناشتہ مکمل کیے بنا ہی اٹھ گئے، اور اسی روز خاور دوبارہ آیا تھا یا شاید بلوایا گیا تھا۔ آپا نے دروازہ کھولا، فل پروٹوکول دیا، چائے تانیہ سے بنوائی، پیش بھی اسی نے کی، پھر اپنے کاموں سے لگ گئی۔ خاور سارا دن وہاں رہا اور پھر شام کو ابا کے آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ سارے دن میں یہ پہلا لمحہ تھا تانیہ نے کھل کر سانس لی تھی، اور پھر خاور اکثر ہی آنے لگا تھا، کبھی آپا کو پھل دینے، کبھی دوا پہنچانے، کبھی اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے۔ ایک روز اسے بھی آفر کرتی، آؤ تمہارا بلڈ پریشر بھی چیک کر دوں۔ وہ جو آپا کو پانی کا گلاس دینے آئی تھی گھبرا کر پلٹ گئی۔ آپا نے کھل کھلا کر کہا لگایا، خود وہ جوں کا توں سنجیدہ بیٹھا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، مسعود کی طرح بار بار کہا نہیں لگاتا تھا، بس دھیمے سے مسکراتا تھا۔ بس اس کی آنکھیں، سرخ ڈوروں والی زرد سی آنکھیں، تانیہ کو بے حد بری لگتی تھی۔ وہ جو بھی کام کرتی، جس زاویے سے بھی اٹھتی بیٹھتی، دو آنکھیں اس کے آر پار ہوتی، جس طرح جوتے کے نرم تلوے میں کوئی کنکر پیوست ہو جائے، تکلیف دے نہ دے، محسوس ہوتا رہتا ہے۔
इसी तरह वो 2 आँखें जो बारीक कनकर बनकर इसके आगे पीछे हर कदम चुपती रहती थीं। आपा कमर पे हाथ रखे हाय वाय करती इसके करीब से गुजरकर कमरे में गायब हो गई थी। आजकल तो कोई काम नहीं करती, बस खा खा कर मोटी हुई जाती हैं। इसने पता नहीं किस लय में खाला से कह दिया था, लो तुम सा मासूम भी कोई होगा बन्नो, तुम्हारे बाप का नया बच्चा पैदा करने वाली है वो। मेरी मानो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास, इसे तो बच्चे का बहाना मिल जाएगा, तुम्हें खूब ही रगड़ा लगेगा। इन दोनों की चाकरी के साथ साथ बच्चे की देखभाल भी तुम्हारे सर आ जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आता भाईजान, अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं। उसने आहिस्तगी से फ़ोन रख दिया। खाला के 4 बेटे थे, वो इसे बहू बनाने की ख्वाहिशमंद भी थी। अब्बा कहते थे, तुम्हारी खाला बेहद लालची और हरीस औरत है। पहले तुम्हें और 2 लड़कों का जहेज़ हथियाएगी, बाद में जायदाद बटोरने के मंसूबे बनाने लगेगी। और मैं भी कितनी नादान हूँ, खाला कहें तो वो सच्ची लगती हैं, अब्बा की सुनो वो भी दुरुस्त। पता नहीं लोगों की पहचान कैसे करते हैं। वो रात की तारीकी में बैठकर इंसानों की पहचान के पैमाने तैयार करती, वक्त आने पर सारे के सारे मेयार बोगस साबित होते। जर्द रोसी शाम थी। वो क्यारी के करीब बैठी चावल चुन रही थी। पलट कर देखा तो खावर था, यूं बैठा था जैसे बहुत फुर्सत में हो। सर कुर्सी की पुश्त से टिका रखा था, दाएं हाथ में सिगरेट सुलग रहा था जिससे मध्यम सा धुआं उठता था और फ़ज़ा में सिगरेट की मखसूस सी महक बनकर फैल रहा था। पाँव स्लीपर से आज़ाद सामने की मेज़ पर टिका रखे थे, ज़ेर लब दोहरा रहा था, तुम जो होते तो ज़िंदगी हमसे। तल्ख लहजे में बात करती क्यों। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, हल्के से दर्द में लिपटी मुस्कुराहट। वो जाने क्यों इसे देखती चली गई। खावर की नज़रों ने जाविया बदला। तानिया ने महसूस भी कर लिया, जाने क्या हुआ, अपनी नज़रों का जाविया बदल ही ना पाई। वो जहाँ थी टिकी रहीं, यहाँ तक कि खावर की नज़रों में सवाल उतर आया। तब जैसे वो किसी ज्ञान से जागी हो, घबरा कर खड़ी हुई तो ज़रा से चावल गिरे और दूर तक बिखरते चले गए। शर्मसार सी बावर्ची खाने में आन खड़ी हुई। एक तो ये क्या ज़रूरत थी गैर मर्द को इतनी गहरी निगाह से देखने की। अम्मा ने घुरका था, हर वक्त पहरेदार बनी फिरती हैं मेरी। पता नहीं अम्मा पे गुस्सा था या ख़ुद पे। बुड़बुड़ाती चूल्हे की तेज़ आंच पे प्याज भूनने लगी। बाहर बैठा खावर नीम व आँखों से चिड़ियों को आंगन में उतरते चावल चुगते देखता रहा। सिगरेट जलकर बुझ गया था, लेकिन मुस्कुराहट थी कि इसके होंठों पर सुलगे जा रही थी। ढेर सारा काम था, सारा निपटा लिया। खुद को खूब थकाया। बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए। दिल जो सोचना चाह रहा है ना सोचे ना दोहराए। लेकिन कमरे में आकर नर्म बिस्तर पर कई करवटें बदलने के बाद भी नींद ने नहीं आना था और ना आई। यहाँ तक कि इसने बेबस होकर ख़ुद को आज़ाद छोड़ दिया। आँखों ने जो देखा था कई बार सोचा, दिल वैसे धड़का जैसे शाम को धड़का था। इस पल, इस लम्हे जब इसके वजूद को खावर ने अपनी नज़रों के हिसार में लिया था, जब दोनों की आंखें चार हुईं, जब खावर की पुरख्याल सुर्खी माइल आँखों में इसके लिए सवाल उभरा था, जब इसने खावर के चेहरे के एक एक नक्श को घड़ी भर के लिए बहुत वजाहत से देखा था, और जब से इसकी आवाज़ कानों में बार बार गूंजती थी। बाज़ मर्दों की आवाज़ कितनी खूबसूरत होती है। पता नहीं उस जर्द रोज़ शाम का फसूं था या इसकी कच्ची उम्र का। इस रात बहरहाल इसने खावर को बारहा सोचा था। फिर इसने खावर से भागना छोड़ दिया। इसका देखना भी अब बुरा न लगता था, बस घबराती और शर्माती थी। इसकी तरफ देखने से कतराती थी। कभी वो बराह रास्त इसे देखता, इससे बात करता तो इसकी जान पे बन आती थी। उस रोज़ आपा के कहने पर वो खावर के लिए चाय बना कर लाई तो खावर ने हाथ में पकड़ा सिगरेट। एक लंबा कश लेने के बाद एस्ट्रे में मसलते हुए इसे पुकारा, तानिया। वो चौंक कर मुड़ी। आओ, तुम्हारा हाथ देखूं? आपको हाथ देखना आता है? ये पहला जुमला था शायद जो इसने खावर से बोला था। ठीक ठाक देखना आता है। आओ यहाँ बैठो। खावर ने कुर्सी घसीट कर अपने मुकाबिल रखी। वो कदरे झिझकते हुए बैठ गई। अपनी हथेलियाँ इसके सामने फैलाती, कोरी बेदाग नरम गुदास गुलाबी हथेलियाँ, जिन्हें खावर ने कई लम्हे नज़रों के हिसार में रखा। फिर एकदम ही खावर का मजबूत सांवला खुरदरी हथेली वाला हाथ इसके हाथ के नीचे आ ठहरा। वो ज़रा सा कपकपाई, चौंक कर निगाह उठाई। खावर के दिल में क्या है, इसके चेहरे से अंदाज़ा न कर पाई थी। खावर ने अंगूठे से इसकी हथेली में बिखरी महीन सी लकीरों को छुआ तो तानिया का दिल पिघल कर पूरे वजूद में धड़कने लगा था। तभी हल्की सी आहट हुई।
ان دونوں نے سر اٹھایا۔ ابا چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اور آنکھوں میں کیا تھا ان دونوں کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ تانیہ نے فوراً چاہا کہ ابا پر واضح کر دیں۔ ابا، خاور میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی باتیں بتائیں گے۔ لیکن خاور نے یوں بدک کر اس کا ہاتھ چھوڑا کہ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ اصولاً خاور کو ابا کو سلام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلی تھی۔ نظریں چرا کر لمبے لمبے ڈگ پھلتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ وہ ہکا بکا سی بیٹھی اپنے سامنے رکھی خالی کرسی اور اپنے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہ گئی۔ تم اس قدر نادان اور بے وقوف ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ان کا لہجہ درست اور آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا؟ پہلوؤں میں لٹکتے ہاتھوں میں بیڈ شیٹ دبوچے ہراساں سی بیٹھی تھی۔ یہ سب کے سب کم ظرف، گھٹیا اور کمینے لوگ ہیں۔ تمہارے قابل ہونا تو دور کی بات، تمہارے معیار کو بھی نہیں چھو سکتے۔ آئندہ تم ان کے قریب بھٹکی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابا کہہ کر پلٹے، پھر قدم آگے نہ بڑھا سکے۔ آپا دروازے میں کھڑی تھی، نہ صرف کھڑی تھی بلکہ حرف بحرف سن بھی چکی تھی۔ تانیہ نے ابا کے چہرے پر ایک رنگ آتے اور ایک رنگ جاتے دیکھا تھا۔ آپا نے کچھ کہا نہیں، یوں ہی پلٹ گئیں۔ لیکن رات ہونے سے پہلے وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ کئی مہینوں بعد تانیہ نے ابا کو ایک بار پھر رات بھر جاگتے اور خود سے باتیں کرتے سنا تھا۔ ہم تو گھٹیا، کم ظرف اور کمینے لوگ ہیں۔ آپ آسمان سے اتری اعلیٰ عرف مخلوق، ہم آپ کے قابل کہاں؟ آپ کے معیار کو تو چھو بھی نہیں سکتے۔ جائیے محترم، اپنے ہم پلہ لوگوں کو ڈھونڈیں اور انہی سے رشتہ جوڑیں۔ آپا بیٹا پیدا کرنے والی تھی، انہیں پتہ تھا کہ پتہ ان کے ہاتھ میں ہے، سو نخرہ دکھانا تو بنتا تھا نا۔ ابا روز جاتے آپا کو لینے، پھر انہی قدموں واپس بھی آ جاتے۔ آخر ابا معافی تلافی پر اتر آئے۔ اس بار آپا نے نرمی دکھائی۔ ٹھیک ہے، چلوں گی آپ کے ساتھ، لیکن میری ایک شرط ہے۔ آپ تانیہ کے بول خاور کے ساتھ پڑھوا دیجیے۔ دیکھیے میاں، ہمارے درمیان جب بھی جھگڑا ہوا اسی تانیہ کی وجہ سے۔ جب تک وہ اس گھر میں ہے یہ مسئلے مسائل نکلتے ہی رہیں گے۔ وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو آپ بھی سکون سے ہم ماں بیٹے کی دیکھ بھال کر سکیں گے۔ اور ویسے بھی تانیہ خاور سے محبت کرتی ہے، خاور بھی اسے نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ آپا کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ابا چپ چاپ اٹھ کر چلے آئے۔ اس نے تیسری بار کمرے میں جھانکا تھا۔ ابا ایک ہی زاویے میں بیٹھے تھے۔ چائے کا کپ ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس پر بالائی کی تہ جم چکی تھی۔ کون سی سوچ ہے جو ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی؟ وہ فکر من سے آگے بڑھائی۔ ابا آہٹ پر چونکے، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ ٹانگیں سمیٹ کر گویا اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی انہیں دیکھے گئی۔ آپ نے چائے نہیں پی ابا؟ دیر بار وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ ابا نے طویل سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بولے تو یوں گویا اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ یہ بہت عجیب سا خاندان ہے۔ عورتیں گھر کا خرچ چلاتی ہیں اور مرد گھروں میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ میری مجبوری تھی، میں پھنس گیا۔ اس عمر میں کوئی مناسب رشتہ مل جانا کوئی ایسی آسان بات نہیں تھی، اور تمہارا رشتہ اس خاندان سے جوڑنا۔ انہوں نے قطعی انداز میں سر جھٹکا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے سامنے کوئی مجبوری نہیں کہ تم اپنے سے دگنی عمر کے مرد کو اپنے لیے منتخب کرو۔ ابا پھر خاموش ہو گئے۔ اس کا دل چاہا کہتے، میں نے کب کسی کو منتخب کیا ہے؟ لیکن وہی کم ہمتی، کم حوصلگی ہونٹوں پہ آئی بات بھی نہ کہہ پائی۔ اپنا سامان باندھ لو۔ ہے؟ اس نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ بلکہ سامان کیا، ایک بیگ میں چند جوڑے رکھ لو۔ میں چاہتا ہوں تم ان لوگوں کے سائے سے بھی دور رہو۔ سریا کو تو میں لائن پر لے آؤں گا، اس کے نام نہاد رشتہ داروں سے بھی جان چھڑوا لوں گا، بس ذرا بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ باندھ لیتا ہے عورت کو، پھر بیٹا ہو تو ماں کو ہلنے بھی نہیں دیتا۔ ابا اس سے کہتے کہتے خود سے کہنے لگے تو اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ چند جوڑے کیوں رکھ لوں؟ ابا مجھے کہاں لے جائیں گے؟ کسی دارالامان میں، گرلز ہاسٹل میں، عیدی ہوم، یا ہو سکتا ہے سامان سمیت کسی نہر میں دھکا دے آئیں، یا کسی ریل کی پٹری پر۔ آنسو ٹپا ٹپ بہنے لگے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہ پہلی بار یوں بے بس ہو کر روئی تھی۔ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں، اس کے لیے اتنی چاہت مجھے اس گھر سے نکال دیں۔ نہیں آتی آپا تو نہ آئے، میری بلا سے میں کیوں سامان باندھوں؟ ابا کو تو اب انہی کی پرواہ ہے، میں کون ہوں ان کی؟ بلک بلک کر روتی رہی۔ اماں پائنتی کی طرف آ بیٹھیں۔ اس نے ان کی کوئی تسلی، کوئی دلاسا نہ سنا، الٹا شکوہ کرتی رہی۔ کیا ضرورت تھی اتنی جلدی مرنے کی؟ میرا خیال بھی نہ کیا؟
अब देख लें क्या हो रहा है मेरे साथ। माएँ ज़िंदा न रहें तो बाप भी बाप नहीं रहते। इसे अब्बा से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, इन्हीं अब्बा से जिन्हें वो हमेशा प्यारे अब्बा कहा करती थी। यूं ही सिसकते बिलखते रात गुजर गई। सुबह घड़ी भर के लिए आँख खुलगी कि अब्बा सर पे आ खड़े हुए। बैग खुला पड़ा था, एकदम खाली। उफ़ो, कहा भी था। खैर चलो अब, गाड़ी निकल जाएगी। झटपटे का वक्त था जब वो अब्बा के साथ घर से निकली, इतनी उजलत में कि पलटकर तसल्ली से अपने घर को एक नज़र देख भी ना सकी। कोई याद ना समेटी, कोई एहसास ना चुराया, यूं ही निकल आई खाली हाथ। उस जर्द रोज़ शाम का फसूं भी वहीं कहीं ताक पे धर आई। खावर और इसकी मधुर आवाज़ का जादू, उसकी घर बदरी हथेली का लम्स, उसकी खुरदरी हथेली का लम्स, सब कुछ पीछे रह गया। अम्मा दरवाजे की चौखट पे बैठी थी, शायद वहीं रह गई। इसने आसपास नज़र दौड़ाई, ऊँघते जागते मुसाफिरों में कहीं दिखाई न दी। इसने थक कर खिड़की से सर टिका दिया। बाहर भागते दौड़ते मनाजिर को देखकर इसकी आंखें थकने लगी। खामोशी से आंखें बंद कर लीं। इसके बराबर बैठे अब्बा इससे अलग थलग खामोश बुत बने बैठे थे। बहुत ही खूबसूरत बंगलों की एक तवील कतार थी, जिनमें से एक बंगले में अब्बा इसे लेकर दाखिल हुए थे। यहाँ कल रात गालबन खूब ही बारिश हुई थी। हर चीज़ नम आलूद थी। दरख्त, फूल, पौधे, पत्ते और दीवारें बेज़मीन बिल्कुल भीगी हुई। वो गया किसी हैरत कदे में खड़ी थी। बाहर से नज़र आने वाला खूबसूरत बंगला अपने भीतर में एक जंगल छुपाई बैठा था। ये लंबी लंबी घास, खुदरो जंगली बेलें, दरख्तों पौधों की बेतरतीब बढ़ी हुई शाखें, घास थी कि पुख्ता रविश का बड़े करोफर से छुपाई खड़ी थी। बरामदे की ढलवानी छत को सब्ज़ बेलों ने पूरी तरह छुपा दिया था। नाजुक शाखें नीचे तक लटक रही थी और इन्हीं शाखों से परे एक खातून अपने सामने खड़े मुलाजिम पे गरज रही थी। 6 सालों से हर किसी की गमी, खुशी, शादी, मौत का ख्याल रखा। महीना ख़त्म होने से पहले रुपए ट्रांसफ़र करा देती थी कि तनख्वाह में देर ना हो। और तुम लोगों ने ये हाल किया मेरे घर का, वो चिल्ला रही थी। और मुलाजिम मुअद्दब सुन रहे थे। हर चीज़ का ख्याल रखा है, सिर्फ माली छुट्टी पर था इसीलिए। कब से छुट्टी पर था? मेरे ख़्याल में तो वो इन 6 सालों में 6 बार भी यहाँ नहीं आया होगा। इसकी मुस्तकिल छुट्टी करो, नया माली बुलाओ और मुझे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। पता नहीं कौन है। अब्बा एक तरफ खामोशी से खड़े थे। तानिया उनकी बातों से ध्यान हटाकर एक बार फिर बंगले का जायज़ा लेने लगी थी। अरे तुम! इन खातून की हैरत भरी आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ी। आओ, अंदर आओ। वो बेहद हैरत से बेख्तियार इन लोगों तक आईं। एकदम से पलटी, किसी दरवाजे से अंदर गायब हो गई। मुलाजिम तितर बितर हो गए। अब्बा चंद लम्हे वहीं खड़े अपने हाथ मसलते रहे, फिर हौले से खनकारते हुए कमरे में चले गए। इसने अपने वजूद में थकावट उतरती महसूस की तो वहीं रखी एक कुर्सी पर ढह सी गई। 6 घंटों के तवील सफ़र ने इसे इस कदर थका दिया था कि जहन कुछ भी सोचने से कासिर लग रहा था। वो कुर्सी की पुश्त पर सर गिराए लॉन नुमा जंगल में फुदकती गुलहरियों और उड़ती हुई तितलियों को देखती रही। एक लंबा सा केचवा बरामदे की सीढ़ी के पास बहुत आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। चंद लम्हे से देखती रही, फिर कराहियत से नजरें फेर ली। बारिश के बासी पानी की खुशबू इसके आसपास चकराती फिर रही थी। अब्बा अंदर जाकर जाने कहाँ गायब हो गए थे। इसने बमुश्किल अपने वजूद को कुर्सी से उठाया। अंदरूनी दरवाज़ा खोलने से पहले ही इसने सुन लिया था। तो शादी कर ली तुमने? खातून पूछ रही थी। मजबूरी बन गई थी, अब्बा का जवाब। तानिया ने ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर झीरी से अंदर झांका। अब्बा सर झुकाए बैठे थे। खातून बड़े मगरूर से अंदाज में उन्हें देख रही थी। मर्द बहुत जल्दी मजबूर हो जाता है। अब्बा कुछ न बोले थे, बस फीकी सी हंसी को लबों पे फैलते देखकर इसने दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। मैं तानिया को आपके पास छोड़ने आया हूँ। हो सके तो दुनियादारी का कुछ सबक इसे भी पढ़ा दें। साफ स्लेट की मानिंद है, सीखने की उम्र आई तो अस्मा बिस्तर से जा लगी थी। नई माँ को दुनियादारी का सबक नहीं आता, वो पढ़ा देती। खातून का करोफर, तानिया का दिल चिड़िया के बच्चे की तरह सहम गया था। वो ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी हुई है। अब्बा तावीलें घड़ रहे थे। वो पलटी, दोबारा से कुर्सी पर ढह गई। थोड़ी देर बाद अब्बा बरामद हुए। वो चुपचाप बैठी उनके चेहरे पर फैली सुर्खी को देखते रही, जो किसी ज़ब्त का नतीजा लग रही थी।
یہ عنایہ خاتون ہیں، میری سگی پھپھی کی بیٹی ہیں، بڑے سالوں بعد انگلینڈ سے واپس ہوئی ہے، مستقل قیام کے لیے، تمہارا خیال رکھیں گی۔ ٹھنڈی ٹھار برف گرنے لگی تھی اس کے وجود پر۔ میں یہاں رہوں گی ابا؟ نئے شہر کی نئی فضاؤں میں اس نے ابا سے پہلی بات کی تھی۔ لہجے میں ویسا ہی ڈر خوف تھا جیسے پہلے روز اسکول جاتے ہوئے بچے کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کب تک؟ اور اس نے ایسے پوچھا جیسے چھٹی کب ہوگی۔ ابا نے بے اختیار اسے سینے سے لگایا، ماتھے پہ چوما۔ میں تم سے رابطے میں رہوں گا، فون کرتا رہوں گا، خود بھی آؤں گا ملنے۔ عنایہ خاتون باہر آ گئی تھی۔ چلتا ہوں اب۔ ابا ان دونوں کو چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے بیرونی گیٹ سے نکل گئے۔ وہ دونوں چند لمحے اس روش کو دیکھتی رہیں جہاں ابا کے قدموں سے دبی گھاس اب آہستہ آہستہ دوبارہ سر اٹھا رہی تھی، اور جسے دیکھ کر عنایہ خاتون کو ایک بار پھر ملازموں کی ہٹ حرامی پر یاد آنے لگی تھی۔ تانیہ نے اپنے کپ کپاتے بدن کو کمزور پڑتے دیکھا تو کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ عنایہ خاتون نے ایک نظر اسے دیکھا، تیز تیز قدموں سے چلتی اندر چلی گئیں۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر اونگتی رہی۔ آنکھ کھلی تو ملازمہ اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ عنایہ خاتون بلا رہی ہیں، کھانا تیار ہے، کھا لیجیے۔ تانیہ چپ چاپ اس کی رہنمائی میں پہلے واش روم پھر کھانے کی میز تک جا پہنچی۔ روٹی، سالن، چاول اور کباب۔ میرے دسترخوان پہ ایک وقت میں ایک ہی ڈش بنتی ہے۔ تمہارا پہلا کھانا تھا آج، اس لیے کچھ اہتمام کر لیا ہے۔ تانیہ نے بڑی توجہ سے انہیں سنا۔ ان کے لہجے میں کچھ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کس ٹون میں بول رہی ہیں۔ ملازمہ رائتا اور سلاد بھی رکھ گئی۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا جیسے عنایہ خاتون بڑے دھیان سے اسے دیکھ رہی ہیں، اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے۔ اس کا ہاتھ کپ کپایا اور کچھ چاول میز پہ گر گئے۔ تانیہ نے فوراً نگاہ اٹھا کر دیکھا، وہ واقعی اپنی نظریں اس پر گاڑے بیٹھی تھی۔ قد اپنے باپ کا لیا ہے تم نے، اور رنگ روپ اپنی ماں کا۔ اچھی بھلی خاتون تھی وہ، ایک آدھ بار ملی تھی میں ان سے، اور اس کے بعد ایک لمبی سرد کھانا کھانے کے بعد کسی سے فون پہ مصروف ہو گئی، وہ بھی وہیں ایک صوفے پر ٹک گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ تانیہ نے عنایہ خاتون پر توجہ کی تھی۔ وہ خوبصورت تھیں، بلکہ نہیں، وہ بہت خوبصورت تھیں۔ لمبا سا قد تھا، بے حد سڈول جسم، ہاتھ پاؤں نازک، چہرے کے نقوش متناسب اور جاذب نظر، بال بھورے رنگ میں رنگے ہوئے، سب ٹھیک تھا۔ بس وہ چڑچڑے پن اور بد مزاجی کا تاثر تھا جو ان کی شخصیت کی ساری خوبصورتی پر حاوی تھا۔ کم عمر لگ سکتی تھی، مگر سوٹ کی ہم رنگ شال یوں بکل مار کر اوڑھ رکھی تھی کہ اپنی اصل عمر سے 4-5 سال بڑی ہی دکھتی تھی۔ وہ انہیں دیکھنے میں یوں محو ہوئی کہ پھر ادھر ادھر کی سود بود نہ رہی، خیال ہی نہ رہا کب ٹانگیں سمیٹ کر صوفے پر رکھی ہیں، کب بازو داہنے گال تلے رکھا اور کب گہری نیند میں کھو گئی۔ پچھلی رات کی جاگی ہوئی اور پھر سفر کی تھکان۔ ارے یہ لڑکی تو بہت ہی لاپرواہ اور کاہل لگتی ہے، دیکھو ذرا، بیٹھے بیٹھی خراٹے لینے لگی، کسی نے اسے چادر اڑائی۔ عنایہ خاتون کے چپتے ہوئے لہجے میں اظہار خیال کو بھی اس نے کہیں دور سے سنا، پر آنکھیں تھیں کہ کھلنے پہ راضی ہی نہ تھیں۔ وہیں پڑے گہری نیند سوتی رہی، یہاں تک کہ سارا بنگلہ رات کی تاریکی میں ڈوب کر پہلے سے زیادہ وحشتناک لگنے لگا۔ ڈنر کے بعد ملازمہ اسے اس کمرے میں لے آئی تھی جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ سنو، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ اس نے قدرے جھجک کر کہا تھا۔ چائے بھی مل سکتی ہے، کافی بھی، آپ کیا لینا پسند کریں گی؟ بس چائے، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ اور پھر وہ چائے لائی تو ساتھ میں ہدایات کا ایک پلندہ بھی تھا۔ 9 بجے کے بعد بنگلے کی بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، یہ عنایہ خاتون کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی قسم کا شور ہنگامہ پسند نہیں کرتی۔ رات کے وقت آپ ٹی وی نہیں دیکھ سکیں گی کیونکہ آپ کا کمرہ عنایہ خاتون کے برابر میں ہے، وہ آوازوں سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ عنایہ خاتون کے کمرے میں ان کی اجازت کے بغیر جانا منع ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ وہ اپنے کمرے میں دوسروں کی آمد و رفت کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ رٹے رٹائے جملے ایک ایک کر کے اس کی طرف اچھالنے کے بعد ملازمہ تو چلی گئی تھی۔ وہ اس لگژری روم میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی اور اداس بھی۔ آنکھیں بالکل خشک تھیں، دل دماغ بالکل خالی اور ویران۔ اس نے بدقت خود کو کچھ سوچنے پر آمادہ کیا۔ ابا گھر پہنچ گئے ہوں گے، بلکہ شاید آپا کو بھی لے ہی آئے ہوں گے۔
बहुत आहिस्तगी से खिड़की खोल कर वो चौखट पे जम गई। रात के इस पहर चलने वाली हवा खुन्क थी। दुपट्टा अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटते इसने फिर दानिस्ता सोचा, अब्बा को मेरे बगैर घर कैसा लग रहा होगा? क्या आज भी रात भर जागते खुद से बातें करते रहेंगे? अब्बा की उदासी को महसूस करके इसकी पलकें भीगने लगीं। खिड़की बंद करके वो बिस्तर पर आ लेटी। अजनबी छत, नामानूस दीवारें, वो चित सी लेटी रही। शाम में तवील नींद ले ली थी, अब रात भर नींद नहीं आनी थी, इसे अच्छी तरह मालूम था। सुबह उठकर वक्त पे नाश्ता कर लिया करो। मिडिल क्लास लोगों की तरह सारा दिन घर में चूल्हा जलता रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। रात भर जागने के बाद आखिरी पहर आंख लगी थी तो सुबह खुलती कैसे? देर से जागी थी, सो नाश्ते में भी देर हो गई। अभी तो पहला निवाला ही मुंह में डाला था कि अनाया खातून के सर्द और सपाट सी आवाज़ कानों में पड़ी, जैसे हमवार सड़क पे नन्हे नन्हे पत्थर दूर तक लुढ़कते हुए चले जाएं। निवाला इसके हलक में फंसने लगा था। झट से पानी का गिलास मुँह को लगा लिया, कनखियों से उन्हें देखा। वो बगौर सफाई सुथराई का जायज़ा ले रही थी। दीवारें, दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सियाँ, मेज़, मसनूई आराइशी पौधे, तस्वीर, एक एक चीज़ को छू रही थी। यूं ही देखते देखते वो बाहर निकल गई। पानी का गिलास मुंह से हटाया तो नाश्ते की प्लेट भी परे खिसका दी। मुलाजमा ने हैरत से उसे देखा। वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। अब्बा ने कहा था फ़ोन करूँगा, राब्ते में रहूँगा, पता नहीं कब करेंगे फ़ोन, कहीं भूल ही ना गए हों। वो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी जब अनाया खातून अंदर आई और इस यूँ बैठे देखकर चिढ़ सी गई। देखो लड़की, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अपने माथे पे उंगली बजाते उन्होंने अपनी याददाश्त को खंगाला। तानिया, वो हौले से बोली। हाँ तानिया, देखो बच्ची, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगी। बड़े अरसे बाद यहाँ आई हूँ, बहुत काम करना है मुझे। पुराने दोस्तों से मिलना है, आर्ट का कुछ काम है, कुछ कोलीग्स के साथ डिस्कशंस, एक बुटीक स्टार्ट करने का इरादा है। फिर घर का बखेड़ा। तुम अपने लिए खुद एक्टिविटीज़ तलाश करो, घर के अंदर, घर से बाहर। कुकिंग में दिलचस्पी है तो इसकी क्लासेस ले लो। फ्लावर मेकिंग, सेल्फ ग्रूमिंग, सब तुम पर है। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि गाड़ी और ड्राइवर तुम्हारे हवाले कर दूँ। विज़िट करो, पसंद करो, जहाँ एडमिशन लेना हो तो बता दो, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। मैं कब तक यहाँ रहूँगी? इतनी लंबी गुफ्तगू के जवाब में इसका ये सवाल। अनाया खातून के चेहरे पे बरहमी देखकर इसे अपनी गलती का बेतहाशा एहसास हुआ था। मेरा मतलब है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो करीब था कि वो रो देती। अनाया खातून तवील सांस लेकर सीधी हो बैठी और बगौर इसे देखने लगी। बहुत कम उम्र हो तुम। तुम्हारे अब्बा कह रहे थे तुम्हें दुनियादारी का कुछ तरीका सलीका समझा दूँ। दरिया के पानी में उतरें तो ही इसकी गहराई का अंदाज़ा हो पाता है। तुम दुनिया में निकलोगी तो दुनियादारी भी सीख जाओगी। ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाए गए सबक वक्त आने पर नाकारा साबित होते हैं। बाहर का मौसम करीब था। लालियों का नया जोड़ा उतरा था। बंगले की आखिरी दीवार के साथ सर्वेंट क्वार्टर के रोशनदान की जालियों में घुसते निकलते इन परिंदों को देखकर इसे बारहा अपना घर याद आया था। बरामदे के जालीदार रोशनदानों में चिड़ियों ने कई घोंसले बना रखे थे। इस मौसम में कैसी हलचल और शोर मच जाया करता था। वो लालियों को घोंसला बनाते देखती और इन तिनकों को याद करती जो बरामदे में जा बजा बिखरा करते थे। अजीब काहिल और सुस्त लड़की है ये। मुँह उठाए परिंदों को देखती रहती है, जहाँ दिल चाहे पढ़कर सोए रहती है। अनाया खातून बड़ी नागवारी से मुलाजमा के सामने इजहार कर रही थी। महज इत्तफाक इसी वक्त वो भी अंदर दाखिल हुई और उनके ज़रूरी ख्यालात से फैज़याब हो गई। ऐसे वक्त में इसकी सांसें सीने के अंदर ही उलझने लगती थी। वो बता ही ना पाती कि उनके लग्जरी रूम में इससे रात रात भर नींद ही नहीं आती। आंखें थक जाती हैं, करवटें बदल बदल कर जिस्म चूर हो जाता है और बेतहाशा सोचें दिमाग को बेसुकून किए रखती हैं। ऐसे में दिन के किसी पल में चंद लम्हों की झपकी जो इसे गनीमत महसूस होती थी, अनाया खातून को इस पर भी एतराज़ था। अब्बा ने मुझे यहाँ छोड़कर गोया अपने सर से बला टाली है। अभी अभी अब्बा का फ़ोन आया था। वो जो भागी भागी नंगे पाँव बेताब से फ़ोन तक आई थी। अब्बा का नपा तुला लहजा और लिया दिया सा अंदाज सुनकर बुझ सी गई। अब्बा, मैं वापस कब आऊँगी? इसने बड़ी हिम्मत से पूछा था। जवाबन कुछ लम्हों की खामोशी के बाद लाइन कट गई थी।
اس نے بھی اسی خاموشی سے رسیور رکھ دیا اور چپل پیروں میں اڑس کر باہر نکل آئی۔ بی زیادہ دور مت جائیے گا۔ چوکیدار کی واضح ہدایت کے باوجود وہ سیدھی سڑک پہ چلتی رہی تھی۔ سنسان سڑک پہ اس کے سوا ایک ہی نومر لڑکا تھا جو ایک تواتر سے کسی بنگلے کی بیل بجا رہا تھا۔ سڑک آگے سے مڑ رہی تھی، وہ وہیں سے واپسی کے لیے پلٹی۔ تبھی اس بنگلے کا گیٹ کھلا۔ اس نے بے دھیانی میں اس بنگلے سے کسی کو نکلتے پھر خون خوار انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اینی پرابلم ود یو؟ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شرٹ کے اوپری بٹن کھلے۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً گہری نیند سے جاگا تھا، لیکن وہ اس سے کیوں مخاطب تھا؟ تانیہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ جی؟ بدتمیزی کی کوئی حد ہوتی ہے، میں پوچھ سکتا ہوں اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ کس حرکت کا؟ اس کی جان پہ بن آئی۔ گھنٹے بھر سے بیل دے رہی تھی آپ۔ کیوں؟ اگر کوئی گھر سے نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اوہ، اسے صورتحال کا ادراک ہوا۔ دیکھیں اس نے فوراً وضاحت دینی چاہیے۔ سامنے کھڑا شخص اس کی بات سننے کے لیے راضی ہی نہ ہوا تھا۔ اتنی درشتی، اتنی صفاقی سے گرجا کہ ضبط کا یارہ نہ رہا۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تو مقابل کو ایک دم چپ سی لگ گئی۔ اب اس طرح رونے سے کیا مطلب؟ چند ثانیے وہ تہذیب سے آری لہجے میں دوبارہ گرجا تھا۔ اب کون مطلب سمجھاتا اسے؟ وہ سائڈ سے ہو کر نکل گئی تھی۔ ارے رکو، سنو، ایکسکیوز می۔ چند لمحے اس کے پیچھے لپکا، پر وہ تھمی نہ اس کے آنسو، یہاں تک کہ بہتے آنسوں کو اپنے پلوں میں سموتی وہ اپنے کمرے میں آ بند ہوئی۔ اتنا غم، اتنے آنسو، پس پردہ کون سی بات تھی؟ کون تھا جس کا دیا ہوا زخم گہرا تھا؟ وہ اجنبی شخص یا اس کا اپنا باپ؟ یہ سوچنے کی فرصت کسے تھی؟ اگلے 3 دن وہ جیسے کس بخار میں پھنکتی رہی۔ عنایہ خاتون مصروف سے مصروف تر، ان سے سامنا نہ ہوتا تو انہیں یاد بھی نہ رہتا کہ اس گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی بستا ہے۔ ملازمہ نے اطلاع کی، تانیہ بی بی کو بخار ہے۔ میڈیسن دو اس کو، ضرورت ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانا۔ ملازمہ نے یہی کیا، دوا دے دی، اس نے کھا لی۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا تو وہ راضی نہ ہوئی۔ اسے ضرورت نہ تھی، جانتی تھی ڈاکٹر کے پاس ہر مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ چوتھے روز اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل ہوئی تو عنایہ خاتون سے آمنا سامنا بھی ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونک سی گئیں۔ ارے یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ چند قدم چلنے سے ہی سانس پھولنے لگی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر اس نے ملتجی انداز میں کہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح خلاف توقع بات کہہ کر اس نے انہیں چڑھا دیا تھا۔ میں لے کر آئی تھی تمہیں، جس کے ساتھ آئی تھی اس سے کہو آ کر تمہیں لے کر جائے۔ بہت بڑے بنگلے میں رہنے والی عنایہ خاتون بات بہت چھوٹی کرتی تھی۔ تانیہ صوفے پر بیٹھی فضا سے آکسیجن کشید کرتی رہی، اور عنایہ خاتون اس لڑکی کو اپنے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل کرتی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے سوچا، پھر اسی آن فون کا نمبر ملا کر کہہ بھی دیا، مجھے آ کر لے جائیں ابا، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ اسے 80% یقین تھا کہ ابا اسے ٹال دیں گے، کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیں گے۔ جواباً ابا نے کہا، جسے سننے کی 1% امید بھی نہیں تھی اسے، دل نہیں لگتا میرے بغیر یا خاور کے بغیر؟ وہ تھرا کر رہ گئی تھی۔ ابا؟ لفظ اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے بھی نہ پائے تھے کہ ابا نے دوبارہ چابک لہرایا تھا۔ تم یہاں آنا چاہتی ہو، ان بے غیرت لوگوں کے ہاتھوں کھلونا بننا چاہتی ہو، تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر؟ پدرانہ غیرت کا تقاضا تھا وہ اس سے آگے کچھ نہ کہتے، لیکن اس کی غیرت نے بہت آگے کی بات سمجھ لی تھی۔ رسیوری ہاتھوں سے نہ چھوٹا تھا، اسے پتہ چلا کہ باپ کا اعتبار، محبت، شفقت سب کچھ چھوٹ گیا ہے۔ سانسیں بے طرح الجھ گئی تھیں۔ اس سے قبل کہ وہ وہیں گر جاتی وہ بھاگ کر باہر نکل آئی تھی۔ دونوں ہتھیلیوں پہ اپنا سر گرائے وہ انتظار میں تھی، کون سی سانس آخری ہوگی۔ تبھی کوئی قریب آ کر جاندار آواز میں پکارا تھا، عنایہ خاتون ہوں گی گھر پہ؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ایسا دیکھا کہ سامنے والے پہ گویا کو طلسم پھونک دیا۔ ایسا چہرہ، ایسی آنکھیں، ایسی نظر، وہ پتھر تھا جو بھر بھری ریت بن کر ڈھہ گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا۔ یہ چہرہ آج سے پہلے کائنات میں کہیں نہ دیکھا تھا، نہ یہ آنکھیں، نہ ان آنکھوں میں تاحز، لیکن تلاش اسی کی تھی۔ وہ اس کے وجود کا کوئی گمشدہ حصہ تھی جسے پا کر اس کے روح کی تکمیل ہونا تھی۔ وہ اس کے سامنے نہیں تھی، جا چکی تھی۔
बस वो रह गया था हैरान बेयकीन, यहाँ तक कि शाम का सूरज जिसके सामने डूब कर चारों ओर तारीकी फैला किया था। अब्बा, इसी तारीकी में इसके होंठों से सिसकी बंद कर उभरा था। क्या हो गया आपको अब्बा? आपने ये सब मेरे लिए सोचा, मेरे लिए कहा? कौन सा खावर? कहाँ है? न कभी सोचा न याद आया, वो तो वहीं कहीं रह गया था, इसी शाम की दहलीज पे। अब्बा क्या समझे थे? क्या करती थी मैं तन्हाई में? किसके हाथों खिलौना बनी थी? या अल्लाह, ये सब कैसे सोचा अब्बा ने? सोचा ये उनके दिमाग में उंडेला गया। सर्दी महसूस होने लगी थी, इसने कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल लिया। पूरा बदन कपकपा रहा था। वह कंबल लपेटे पड़ी रही। सर्दी बढ़ती रही। बिस्तर पर कांटे उगाए थे। फिर नींद किस काफर को आती। रेयान जहांगीर आपसे मिलने आए हैं, मुलाजमा ने खिड़की का पर्दा हटाते हुए इत्तला दी। जलती आंखों में रोशनी सी भर गई थी। मैं किसी रेयान जहांगीर को नहीं जानती। अनाया खातून के सगे भतीजे हैं, आपका तो नाम भी नहीं जानते, फिर भी बज़िद हैं कि आपसे मिलेंगे। कहते हैं कल लॉन में बैठी थी, कोई मेहमान है क्या? नाम भी मैंने उन्हें बताया, तानिया। तानिया ने बहुत ध्यान से सुना। सोचा कल लॉन में जो सामने आया था, और फिर इससे पहली मुलाकात को मुझे नहीं मिलना, कह दो उनसे। और मुलाजमा ने बाहर जाकर कह भी दिया। वो नहीं आएंगी तो मैं चला जाऊंगा उनके कमरे में, लेकिन मिले बगैर नहीं जाऊंगा, बता दो उन्हें। अजीब धौंस भरा अंदाज था। हाँ, नाया खातून का सगा भतीजा है, बोल सकता है इस तरह। कंबल से बाहर निकलती बदन पे लर्जा तारी हो गया था। या अल्लाह, वो शाल ओढ़ती बाहर निकली। क्या कहेगा मुझसे? बदिक्कत चलती हुई ड्राइंग रूम तक आई थी। वो इसे देखकर खड़ा हो गया था। धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इसने अपनी आंखें मसली, कदम ज़रा सा डगमगाए थे। मैं माजरत करने आया था, आई एम सॉरी। उस दिन मैं बहुत बदतमीज़ी से बोला। इनफैक्ट मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आपने इतने तवातुर से बैल दी तो। हमेशा वो गलतियाँ मेरे खाते में क्यों डाल दी जाती हैं जो मैं नहीं करती? वो कहना चाहती थी, लेकिन कहा ना क्या। टांगें कमज़ोर पड़ गई थी। बड़े ज़ोर का चक्कर आया। आंखें बंद होने से एक लम्हा कबल इसने रेयान जहांगीर को तेज़ी से अपनी तरफ लपकते देखा। लाख चाहा इसने कि ख़ुद को संभाल ले, लेकिन तारीकी थी कि बढ़ती ही चली गई। हवास खोने से पहले इसने दो मजबूत हाथों का लम्स अपने कंधों पर शिद्दत से महसूस किया था। तुम मेरे घरेलू मामलात में हद से ज़्यादा दखल दे रहे हो। घरेलू मामलात? ये इंसानी जान का मामला था, जो घरेलू से ज़्यादा वर्ल्ड लेवल का मामला लग गया था। वर्ल्ड लेवल का मामला बन गया था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें एक सिचुएशन क्रिएट करने की? डॉक्टर जैदी को फ़ोन कर दिया, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग से मुझे उठा कर लाए, घर भर को हिला के रख दिया, वो भी बिला वजह। नहीं, वजह तो थी फुप्पो, जान का मामला था। अनाया खातून जितना हाइपर हो रही थी वो इतना ही कूल था। तानिया ने होश और बेहोशी के आलम में दोनों की बातें सुनी, फिर गहरी नींद में डूब गई। अनाया खातून ने बड़ी बेइज्जती की बेचारे की, पर हम क्या कर सकते थे? फुप्पी भतीजे का आपस का मामला था। वैसे एक बात बताऊं, मुलाजमा इसे दवा खिलाने के बाद अब इसके बाल सुलझा रही थी। अनाया खातून रेयान साहब को रत्ती बराबर पसंद नहीं करती। दिल चाहे तो खड़े खड़े घर से निकाल देती। ये तो बस रेयान साहब का दिल अच्छा है, जो ताल्लुक़ को जोड़े हुए हैं, खबरगिरी करते रहते हैं। ऐसा क्यों है सुल्ताना? वो पूछे बगैर रह ना सकी। ज़्यादा तो मालूम नहीं, बस इतना पता है कि अनाया खातून और उनके भाई जहांगीर की मंगनी वट्टे सट्टे में हुई थी। जहांगीर साहब ने तो अपनी मंगेतर को अपना लिया। अनाया खातून के मंगेतर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर जी अनाया खातून ने बड़ा ज़ोर लगाया कि जहांगीर अपनी बीवी को तलाक देकर उनकी बेइज्जती का बदला लें। लेकिन जहांगीर को अपनी बीवी मुनज़्ज़ा से सच्ची मोहब्बत थी। उन्होंने बीवी को साथ लिया, बैरून मुल्क जा बसे। वहीं रेयान जहांगीर की पैदाइश हुई। बस जी, इसके बाद से दोनों बहन भाइयों में कभी ताल्लुकात इस्तवार ही ना हो सके। सच कहूँ तो अनाया खातून ही उन्हें माफ़ी देने पर राज़ी नहीं, वगरना वो बेचारे तो आज तक सर टकरा रहे हैं कि किसी तरह ये रंजिश उनके दिल से निकल जाए। पर ना जी, अनाया खातून का दिल किसी ज़माने में होगा खून का लोथड़ा, पर अब तो पत्थर है पत्थर। वो चुपचाप सोने गई थी। रेयान जहांगीर का इस घर में पहले भी आना जाना था, लेकिन इस बाकायदगी से नहीं जिस तवातुर से वो अब आने लगा था।
عنایہ خاتون اپنے کاموں میں مگن ریان جہانگیر کی روزانہ حاضری سے بے خبر تھیں۔ ملازم سب جانتے تھے، کان اور آنکھیں کھلی تھیں، لیکن زبانوں پہ قفل ڈال رکھے تھے، اور بتاتے بھی تو کیا۔ وہ عنایہ خاتون کا پوچھتا یہ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہوتی۔ وہ پوچھتا تھا، لیکن نگاہیں کھوجتی رہتی، کبھی وہ دکھائی دے جاتی، کبھی نامراد لوٹ جاتا۔ یا آپ ہر وقت کھوئی کھوئی اداس اور غمگین سے کیوں رہتی ہیں؟ وہ بہت دنوں بعد چہل قدمی کے لیے نکلی تھی، جب ریان جہانگیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آ گیا تھا، اور اب اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتا کم، دیکھتا زیادہ تھا۔ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ میرا مطلب ہے کبھی کبھی خوش ہو لینے میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ بندے کو ہنستا مسکراتا نظر آنا چاہیے، کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، ارے خوش ہونے مسکرانے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ ریان جہانگیر نے از حد حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ارے ہم ہاتھ پاؤں ناک کان آنکھوں والی صحت مند مخلوق ہیں، میرے خیال میں تو خوش رہنے کے لیے یہی وجہ کافی ہے۔ وہ اب الٹے قدموں اس کے سامنے چلنے لگا تھا۔ یہی کیا کم ہے کہ جسے چاہتے ہیں دیکھ لیتے ہیں، جدھر دل چاہتا ہے چل دیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، اور 4 روزہ زندگی میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ ذرا ذرا سی بات کو لے کر رنجیدہ کیوں ہو جاتے ہیں آخر۔ وہ اپنا فلسفہ بول رہا تھا اس تواتر سے کہ اسے بریک دینے کے لیے تانیہ کو اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ کیا ہوا؟ میرے خیالات پسند نہیں آئے کیا؟ وہ واپسی کے لیے پلٹی۔ ایسے کیسے جا سکتی ہیں؟ آئیے میں آپ کو اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس نے یوں چھڑایا تھا گویا کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اوہ آئی ایم سوری، میں تو صرف… وہ اپنی زرد رنگت سمیت یوں وہاں سے بھاگی تھی کہ ریان جہانگیر کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ تیز قدموں سے چلتی رہی، جانتی تھی کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، اور وہی ہوا تھا۔ گیٹ سے اندر جاتے ہوئے پل بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا جہاں تانیہ اسے چھوڑ کر آئی تھی، ڈوبتے سورج کی لالی میں استادہ ایک ہیولے کی مانند۔ نہیں، اب کوئی غلطی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک اور شام تھی جو اس کے حواسوں پہ چھانے کو تیار کھڑی تھی۔ وہ بلند قامت ہیولا ایک اور شام اس کے پلو سے بندھ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، ڈری ہوئی، دل میں کئی عہد باندھ لیے۔ نہ آواز سنوں گی، نہ چہرہ دیکھوں گی، بات تو بالکل بھی نہیں۔ لیکن اس نے ہاتھ کیوں پکڑا میرا؟ وہ دل ہی دل میں لڑتی اور جھگڑتی رہی۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا ہے؟ ڈھنگ کا جوڑا؟ اس نے ناشتہ چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے عنایہ خاتون کو دیکھا۔ پتہ نہیں ڈھنگ کے جوڑے سے ان کی مراد کیا تھی؟ کہاں ہوگا تمہارے پاس؟ اچھا چلو میں دیکھتی ہوں۔ بات کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ لگا۔ انہوں نے خود ہی بات شروع کی، خود ہی لپیٹ دی۔ شام کو البتہ ایک نہایت خوبصورت لباس اس کے سامنے رکھ دیا۔ منزہ جہانگیر آ گئے ہیں دبئی سے۔ آتے ہی محفل بھی جما لی۔ تمہارے ابا کو جانتے ہیں، اصرار کر رہے تھے کہ تمہیں بھی ساتھ لے کر آؤں، حالانکہ میں تو خود بھی جانا نہیں چاہتی۔ پتہ نہیں ان میاں بیوی کے پاس اتنا فالتو وقت کہاں سے آ جاتا ہے۔ پورے خاندان کو بلا رکھا ہے، اب میں نہ جاؤں، باتیں کرنے کے لیے ایک نیا ٹاپک آ جائے گا سب کے ہاتھ میں۔ رات کو چلیں گے، تیار رہنا تم۔ اور اس کی کیا مجال، کیا تیار نہ رہتی؟ نہا دھو کر لباس تبدیل کیا اور بال سنوار لیے۔ میری آئے تو اسے کہنا پہلے اسے کچھ وقت دیتے، میں تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں۔ قدر نخوت سے انہوں نے اپنی بیوٹیشین کا نام لیا تھا، اور میری نے جو 15 منٹ اس پر لگائے تھے وہ عنایہ خاتون پر لگائے گئے 45 منٹ پر حاوی ہو گئے تھے۔ چند لمحے آنکھیں کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ بعض لوگ اپنے حسن سے خود بھی واقف نہیں ہوتے۔ میری کا خیال تھا عنایہ خاتون اس کارکردگی پر اسے سراہیں گی۔ یہ کیا بنا دیا ہے تم نے اسے؟ میرے خیال میں تو تمہیں نئے سرے سے ٹریننگ لے لینی چاہیے۔ انہوں نے کڑی نظروں سے میری کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ وہاں اتنے سارے لوگ ہوں گے۔ میری نے خاموشی سے اس کا ہاتھ دبا کر اشارہ کیا۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری نے اس کا رخ بدل کر کوریڈور میں لگے آئینے کے سامنے کر دیا تھا۔ یہ دنیا کیسی دنیا تھی؟ کیا ان میں سے کسی نے بے اعتباری، بے زبانی، دربدری کا دکھ نہیں سہا؟ وہ گویا کسی حیرت کدے میں کھڑی تھی۔ عنایہ خاتون اسے بھلا کر کسی مجسمے کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی بیٹھی تھیں۔ وہ ان سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی انگلیاں چٹکاتی رہی۔
जब मुनज़्ज़ा इस तक आ पहुँची। दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम कर बहुत मोहब्बत से देखा था उन्होंने। बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बहुत आला खातून थी वो, जब भी मिलती दिल पर नक्श छोड़ जाती थी। शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें। भरी महफिल में यह कोई वक्त नहीं था पुरसा देने का। इसका एहसास उन्हें शिद्दत से तब हुआ जब तानिया की आंखें तेज़ी से लबरेज होने लगीं। ओह, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। बस तुम्हें देखा तो फ़ौरन ही कह डाला, आओ मेरे साथ, अंदर आओ। वो इसे बाजुओं में घेरे अंदर किसी कमरे में ले गई, आंसू पोंछे, पानी पिलाया। तुम्हारी आंखों का रंग बहुत यूनिक है। नीले कांच सी आंखें थीं। आंसू बह जाने के बाद और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। वो कहे बगैर रह न सकी। तब किसी ने उन्हें बाहर पुकार लिया। वो तन्हा बैठी खुद से लड़ती झगड़ती रही। इन आंसुओं को कोसती रही जो अम्मा के ज़िक्र पर वक्त मुकाम का कुछ ख्याल ही न करते थे। और ग्लास वॉल के परे खड़ा रेहान जहांगीर इसकी एक एक अदा को देखता रहा, यहाँ तक कि वो ख़ुद को समझा बुझा कर इस वसी और इस ड्राइंग रूम में फैली। खामोशी में आगे आ गई। वो इसके करीब चला आया। आपका घर बहुत खूबसूरत है। इसे देखती फ़ौरन बोली। ये गुरेज था। वो ख़ुद को किसी भी सवाल से बचाना चाहती थी। ड्राइंग रूम में इसकी मौजूदगी का सवाल या नाम आँखों पर सवाल, वो कुछ भी पूछ सकता था। वो कुछ भी बता ना पाती। और सामने रेहान जहांगीर था जो कहता था, मोहब्बत दूसरे के दिल में उतर जाने का नाम है। और दिल में तो वो उतर ही चुका था। फिर सवाल, आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। वो इसे बहलाना चाहता था। इस बार रेहान जहांगीर ने इसका हाथ नहीं थामा था। इस कदर एम्बेरसमेंट हो रही थी मुझे कि बता नहीं सकती। तुम इस कदर बेवकूफ़ हो कि सारा वक्त इस बेकार लड़के के साथ इसके घर में घूमती रहीं। सब लोग तुम्हें देख रहे थे। कुछ लोग किस कदर जालिम और सफ़ाक होते हैं। बड़े आराम से होंठों से मुस्कुराहट नोच लेते हैं। अनाया खातून आज के दिन ये ज़ख्म ना लगाती तो मेरी सज़ा कैसे पूरी होती। इतने दिनों में ये तो हुआ था कि दुख और तकलीफ़ को सहने का सलीका आने लगा था। अब दिल पे नश्तर लगता था तो आंसू बाहर नहीं अपने अंदर उतार लेती थी। आईने के सामने खड़ी होकर इसने महीन दुपट्टे को उतारकर एहतियात से रखा। कानों से टॉप्स उतारकर संभालने लगी। पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़े। वो सब चीज़ों के इस्तेमाल में एहतियात बरतती थी। तो आज सब लोग मुझे देखते रहे। क्यों? वो आईने में अपना आप देखती रही बहुत देर तक। मैरी ठीक कहती थी, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और वो भी। इसकी आंखों में जुगनों से उतारा एक कंबल लपेट कर तकिए पर सर रखकर इसने खासी फुर्सत से सोचा। ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजारा था इसके साथ, बस कुछ पल थे जिन्हें मुट्ठी में छुपा कर ले आई थी। और अब वो यूं दमक रहे थे जैसे अंधेरी रात में सितारे टिमटिमाते हैं। तुम बहुत अच्छी हो तानिया। रेहान जहांगीर के ख़ास लहजे में कहा गया आम सा जुमला इसे नींद में भी याद आता रहा था। बहुत चमकीला सा दिन था। लॉन के सब्ज़ पौधे खिली खिली से धूप में लशक रहे थे। अब ये भी नहा कर निकली थी। जवानी और बहार दोनों यौवन पर थे। धूप इसके कोरे बदन को छूकर सोना बनती और पिघल कर धरती पे फैल रही थी। वो फूलों पे उड़ती रंग बिरंगी तितलियों और घास पर चुगती चिड़ियों को देख रही थी जब कोई चुपके से इसके पीछे आ खड़ा हुआ। अनाया खातून के घर में एक ही चीज़ अच्छी है, इसे भी हम ले जाएंगे। जब तक बात का मतलब समझकर वो पलटी। रेहान जहांगीर लॉन की क्यारी फलांग कर अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रहा था। वो लॉन में रखी कुर्सी पर बैठी और इसका कहा गया जुमला दोहराने लगी। दिल खुशगवार से अंदाज में धड़का था। रेहान साहब के मम्मी डैड भी साथ आए हैं, कहते हैं खाना खाकर ही जाएंगे। लेकिन अनाया खातून का मूड नहीं लगता था उन्हें खाना खिलाने का। मसरूफ़ियत का बहाना बनाई जा रही हैं। सुल्ताना इसे चाय का कप लॉन में ही दे गई थी, साथ साथ बताती गई। कुछ देर बाद वो फूली हुई सांसों के साथ भागी आई थी। वो जी आपको मांग रहे हैं। सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना। चाय के बर्तन उठाते हुए वो रेहान साहब के लिए आपको मांग रहे हैं। अनाया खातून ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपके वालिद साहब ही आखिरी फ़ैसला करेंगे। खबर अच्छी थी लेकिन वो जाने क्यों ठंडी ठार सी होकर बैठी रही। इसका दिल कहता था ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या रुकावट है? इसने सोचा। तभी अनाया खातून इसके सामने आकर खड़ी हुई थी।
दोनों हाथ सीने पर बांधे इस्तेहज़ाइया अंदाज में इसे देखते हुए सूरज उनके ओकब में था। तानिया ने सर उठाकर उन्हें देखना चाहा। आंखें चुंधिया गईं। चंद लम्हे खड़ी से देखती रहीं। शायद वो मुस्कुराई थीं और पलटकर माली से बात करने लगी थीं। वो कदरे उलझन में डूबी वहाँ से उठ गई थी। इंतज़ार तवील हो गया था। अनाया खातून क्या सोच रही थी, इनमें से कोई भी नहीं जानता था। पहरो बंगले में चकराती रहती, थक जाती तो लाउंज में पड़े खामोश टेलीफोन को देखा करती। शायद कभी अब्बा को एहसास हो जाए उन्होंने मेरे लिए क्या कहा था, क्या सोचा था। वो मुंतज़िर रहती। शायद आज अब्बा को मेरी याद आ जाए। मौसम कई दिनों से ख़राब था। आसमान बादलों से ढका रहता। सर्दी जाते जाते अपना आप दिखा रही थी। बाहर के मौसम में एक बार फिर स्वेटर जर्सियाँ नज़र आने लगे थे। वो सुबह से बेकल फिर रही थी। ना खाने में जी लगा, ना सुल्ताना की बातें अच्छी लगी। बस ग्लास वाल से चिपकी बाहर बरसती बारिश को देखती रही। कितना दिल चाह रहा था वो भी यूं ही बरसे, खुश्क आंखें तर हो जाएं, दिल का सारा बोझ हल्का हो जाए। लेकिन अब इतनी जल्दी रोना भी नहीं आता था। रात धीरे धीरे उतर रही थी जब अनाया खातून की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी। तुमने बताया ही नहीं, आज तुम्हारी माँ की बरसी थी। तुम्हारे अब्बा का फ़ोन आया तो मुझे पता चला। सारा दिन तो यूं ही गुजर गया, वरना घर में कुरान खानी ही रख लेते। खैर मैंने एक मदरसे में पैसे भिजवा दिए थे, कुरान खाने का भी कह दिया था, देगों का भी। तो अब्बा मुझसे इस कदर खफा हो गए हैं कि आज के दिन भी उन्होंने मेरे लिए तसल्ली और दिलासे का एक फ़ोन करना गवारा नहीं किया। थक कर सोफे पर बैठ गई। शिकायत भरी नज़रों से फ़ोन के सेट को देखा। बहुत ही अच्छे अब्बा इस वक्त बहुत ही बुरे लग रहे थे। दिल में वहशत का उबाल सा उठा था। वो उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। अभी 7 भी ना बजे थे। मैं मुनज़्ज़ा आंटी की तरफ जा रही हूँ, आती हूँ कुछ देर में। चंद मिनट का ही तो फासला था, इसने चौकीदार को बताया। और पानी में छपाक छपाक कदम रखती सीधी सड़क पे चलती। मुनज़्ज़ा आंटी अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। वो मुझसे मिलती हैं तो माँ की खुशबू आती है उनके वजूद से। आज उनके पास बैठकर सारी बातें करूँगी और पूछूँगी, जिन बेटियों की माएँ मर जाती हैं क्या उन्हें घरों से दरबदर कर दिया जाता है? क्या माँ के बाद दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो गम की रोटी बांट कर खा ले, जो चेहरा देखकर जान ले कि आज दिल टूटा है, आज जज्बात को ठेस पहुँची है, आज उदासी रूह से लिपटी जा रही है? कौन जान सकता है? कोई भी नहीं। अगर ऐसा हो सकता तो मरने वाली माँ के लिए कौन रोता, कौन याद करता? इसके आंसुओं का नमकीन पानी बारिश के पानी में घुला जा रहा था। काश नादानी और जवानी के बीच में कहीं कोई पड़ाव या कोई मंजिल होती। ये बात इसने तब सोची थी जब अनाया खातून इन दोनों के सर पर आ खड़ी हुई थी। उनका चेहरा, उनकी आंखें अनाया खातून की नहीं थीं, अब्बा की थीं। उनकी आंखों में क्या था? तानिया अपनी जगह पर कपकपा के रह गई थी। गेट पे चौकीदार नहीं था, वो सीधी अंदर चली आई थी। सारा बंगला रोशन था। लाउंज में टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा था, लेकिन कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था। बादल इतने ज़ोर से गरजा कि वो जी जान से लरसती वहीं सोफे में समा गई थी। मुनज़्ज़ा आंटी, मुनज़्ज़ा आंटी, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। पता नहीं शोर ज़्यादा था या आवाज़ हलक में फंस गई थी। मुनज़्ज़ा आंटी नहीं आई थी। वो दोनों हाथों में मुँह छुपाए बाआवाज़ बुलंद रोने लगी थी। तब भी किसी की आमद का एहसास हुआ। वो रेयान जहांगीर था, सिर्फ जीन्स और टी शर्ट में मलबूस, जिसमें इसके बाजुओं की मछलियाँ हर आन तड़पती और मचलती दिखाई देती थीं। वो लाउंज का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके पलटा था और इसे अपने सामने देखकर शशदर रह गया था। इसकी हैरत बजा थी। वो लाउंज खाली छोड़कर गया था। तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है ना? तुम रो रही हो? कब से बैठी हो यहाँ? बारिश में भीगती हुई आई हो? कौन छोड़ के गया है तुम्हें? इतने सारे सवाल। वो एक का भी जवाब ना दे पाई थी जब इसने रेयान जहांगीर के अकब में लाउंज के ग्लास डोर को दोनों हाथों से बजाती अनाया खातून को देखा था। कहानी बन गई थी। कहीं कोई झोल, कोई कमी, कज्जी या खामी न थी। मुनज़्ज़ा और जहांगीर दोनों घर पर नहीं थे। चौकीदार छुट्टी पर, खानसामा क्वार्टर में, और लाउंज में दरवाजे और खिड़कियां बंद किए रेयान जहांगीर और तानिया सलमान। बुनतकार अनाया खातून थी, फिर कोई कसर कैसे रहती? तानिया रोती गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, कहीं कोई खोट ना था। नफ्स बेलगाम था, ना दिलो दिमाग में कोई खन्नास समाया था।
फिर भी ये सब हो गया, कैसे हुआ और क्यों? ये सब इसकी समझ में ना आ रहा था। ये क्या किया तुमने मेरे साथ? बेटी छोड़ गए थे तो इसके करतूत किरदार की तफसील भी बता जाते, और कुछ नहीं तो मैं किसी को इसकी रखवाली के लिए ही रख छोड़ती। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जवानी मुँह ज़ोर होती है। बरसती बारिश में निकल गई थी घर से, इतने बड़े बंगले में वो और इसका आशिक अकेले। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच गई होती तो बताओ, मैं किस किस को जवाब देती? मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इसने मुझे। सुबह ही आओ और लेकर जाओ इस गंदगी की पोट को। तानिया सामने ही बैठी थी, धड़कते दिल और खुली आंखों के साथ मर चुकी थी। सांसों की आमद और रफ्त को लोग ज़िंदगी का नाम देते थे, तो हाँ, वो ज़िंदा थी। इस कदर जर्द रंगत थी इसकी कि अनाया खातून के रिसीवर रखते हाथ एक लम्हे के लिए कपकपा से गए। खैर मुझे क्या, अपना किया ही भुगत रही है। किसी ने थोड़ी कहा था कि आधी रात को बरसात मनाने अपने आशिक के पास जा पहुँचे। वैसे साकी तो सामित बैठे छोड़ गई थी। बंगले की सारी बत्तियां बुझ गईं। आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। ये अजीब बात है अनाया, यानी तुम्हें अपने खून पर भरोसा नहीं? रेयान जहांगीर हमें सारी बात बता चुका है और हमें अपने बेटे पे पूरा इत्मीनान और यकीन है। इन दोनों की नीयत में किसी किस्म का कोई फतूर, कोई खोट नहीं था। ये महज इत्तफाक था कि वो दोनों उस वक्त अकेले थे, और जाहिर है तानिया बेचारी भी हमारी गैर मौजूदगी से वाकिफ़ नहीं होगी। जब ही तो बरसती बारिश में बग़ैर मुझे बताए मोहतरमा कच्चे धागे से बंधी तुम्हारे बेटे के पास पहुंच गई। अनाया खातून ने भरपूर तंज करते हुए जहांगीर की बात काट दी थी। हाँ, ये गलती इसकी है, मैं मानता हूँ। तुम बुलाओ तानिया को, वो अभी तुमसे माफ़ी मांग लेगी। मुझे किसी माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। बुलवाया है इसके बाप को, आकर लेकर जाएगा। मेरे अपने बेहतरे मामलात हैं, मज़ीद बखेड़े नहीं पाल सकती। इतनी सी बात को लेकर तुमने इसके बाप को बुलवा लिया? मुनज़्ज़ा ने हैरत की इंतहा को छूते हुए पहले अनाया खातून फिर जहांगीर को देखा। जी हाँ, फ़िलहाल इसकी सरपरस्ती इसके बाप के पास है। तो ठीक है, अगली बात उसी से होगी। मुनज़्ज़ा उठ खड़ी हुई थी। हमने नाहक इनसे रिश्ते की बात छेड़ी। यह तो लगता है कुछ पुराने बदले चुकाने के चक्करों में है। मुनज़्ज़ा ने दबे लहजे में ही कहा था, लेकिन आवाज़ इतनी बहरहाल थी कि अनाया खातून के समाते भी फैज़याब हो गई थी। पुराने बदले ही समझो मुनज़्ज़ा खातून। रेयान जहांगीर नामुराद होकर मेरी तरह तड़पेगा, सिसकेगा, तब तुम्हारे कलेजे पे हाथ पड़ेगा, तभी मैं सुकून से मुस्कुराऊंगी। तुम्हारे बेटे की आंखों में मोहब्बत की वैसी ही जौत जलती है जैसे कभी मेरी आंखों में जलती थी मुनज़्ज़ा जहांगीर, और जिसे तुम्हारा भाई नफ़रत के एक ही झोंके से अंधेरों में बदल गया था। मुनज़्ज़ा और जहांगीर जा चुके थे। वो टांग पे टांग चढ़ाई बैठी थी। सौगवार सी खामोशी पूरे कमरे में उनके अतराफ़ में चकराती फिर रही थी। तानिया को बुलाओ, उसे कहो कि इसके अब्बा आए हैं। सलमान हफीज़ किसी मुजरिम की तरह अनाया खातून के सामने सर झुकाए बैठे थे। मैंने आपसे कहा था कहीं छोटा मोटा रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर दें। वहाँ वो बैठी है इसकी सौतेली माँ, कहती है जवान लड़की की बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं नहीं निभा सकती। ननिहाल और ददियाल में कौन है जो इस मुसीबत को गले से लगाए? मैं सुबह से शाम तक रोज़ी रोज़गार से बंधा हुआ इंसान हूँ, इसको साथ साथ लिए फिरूँ क्या? वो इसकी खाला जवान जहान 4 लड़कों की माँ, किसी से भी 2 बोल निकाह के पढ़वा दो, ताक कर हमला किया था अनाया खातून ने। सिर्फ बेटी नहीं लेगी, ज़र और ज़मीन भी मांगेगी साथ ही। 5 मरले के मकान में बैठा हूँ। तानिया और इसकी माँ का हिस्सा निकल गया तो मुझे सर छुपाने को जगह कहाँ मिलेगी? इंसा मजबूर कोई रोए ज़मीन पे ना था शायद। तानिया बीबी तो कमरे में नहीं है जी। मुलाजमा की आमद परेशान कुन अंदाज में हुई थी। क्या मतलब? अनाया खातून फ़ौरन सीधी हुई। हाँ जी, नहीं है, ना कमरे में, ना लॉन में, ना किसी और जगह। मैंने सारा घर छान मारा है, पता नहीं कहाँ गई। अगर तानिया न मिली तो याद रखें आप मुझे भी खो देंगी। वो उनके ऐन सामने खड़ा था। आंखें सुर्ख थी, लब कपकपाते हुए, सांसें बेतरतीब, जैसे कोई कीमती मता छिन जाने पर जानकनी की अजियत से गुजर रहा हो। उन्होंने आंखें चुराईं और अपने कंधों पर रखे इसके हाथ झटक कर दूर जा बैठी। वो बेकसूर है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। वो अब सलमान हफीज़ के सामने दो जानों बैठा था। गुनाह नहीं किया तो फिर कहाँ जा छुपी है? उनके लहजे से नफ़रत बोल रही थी। नहीं जानता।
अगर जानता होता तो ले आता इसे और कहता कि सब कुछ एक भयानक ख्वाब था, सिर्फ ख्वाब। हारे हुए अंदाज में कारपेट पर बैठा था। हाँ, वो उस रोज़ आई थी, बारिश में भीगती रोती हुई। उसने कहा था आज मेरी माँ की बरसी है। अब्बा ने मुझे एक फ़ोन तक नहीं किया और बस इतना ही कहा था जब अनाया फुप्पो ने दरवाज़ा खटखटाया। हाँ, दरवाज़ा बंद था क्योंकि मैं तानिया की वहाँ मौजूदगी से लाइल्म था। मैं अब भी लाइल्म हूँ। 6 घंटे गुजर गए। मैं नहीं जानता वो कहाँ है। जानता होता तो ले आता इसे। उठकर बाहर निकल गया था। 24 घंटे गुजर गए थे। उन्होंने हर मुमकिन जगह इसे तलाशा था, खोजा था। थाने में ख़बर कर दें या किसी अस्पताल में ढूंढें, कहीं जान ही ना दे दी हो। अजीब जाहिल औरत थी सुल्ताना भी। अनाया खातून ने जिन नज़रों से इसे देखा था वो चादर की बुक्कल मारकर कमरे से निकल गई थी। सलमान हफीज़ के सामने जाकर इसके कदम भारी पड़ गए थे। वो बाहर लॉन में बैठे थे, दोनों हाथों से सर जकड़े। आपकी बच्ची बड़ी गैरत वाली थी, मुँह से कुछ ना बोलती थी, आंखें सब कह देती थी। मैं तो कहती हूँ किसी अस्पताल में देखे जाकर, हो ना हो। उन्होंने दहल कर सर उठाया। अच्छा भला रिश्ता डाल कर गए थे जहांगीर साहब। पता नहीं अनाया खातून ने देरी क्यों की। बिन माँ की बच्ची थी, मुंह पे कुफल डाले रखती थी। दिल की बातें कहने सुनने को एक और जी मिल जाता तो किसी का क्या जाता भला। सुल्ताना ने खौफ खुदा से ज़ेर होकर अपनी पूरी कोशिश कर डाली थी सलमान हफीज़ की आंखें खोलने की। अब आगे उनका शऊर था, थपकी देकर सुला देता या झटका देकर जगा देता। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? मुझसे किस चीज़ का बदला लिया है आपने? वो अपने सीने में छुरा घोंपे ऐन उनके सामने आ खड़ी हुई थी, भल भल बहता लहू। वो एकदम वहशतज़दा होकर चिल्लाई, क्या हुआ अनाया? अनाया क्या हुआ? सब लोग उनके गिर्द जमा थे। वो टुकर टुकर सबको देखती रही। कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या हुआ है। वो सोई तो ना थी, यहीं बैठी थी सबके दरमियान। फिर शायद झपकी से आ गई थी, लम्हा भर की गफलत। वो बुरी तरह चौंकी। लम्हा भर की गफलत किसी की जान भी ले सकती है। ये क्या किया था उन्होंने? एक मामूली सी बात को क्या रंग दे दिया। रिश्तों से, जज्बात से, फ़राइज़ से गफलत ही तो बढ़ती थी। उन्होंने नज़रें चुरा कर ज़रा सा पहलू बदला। पता नहीं कहाँ होगी। अगर सचमुच मरमरा गई तो क्या मैं ख़ुद को माफ़ कर सकूँगी? उन्होंने बुरी तरह झुरझुरी लेकर खौफज़दा निगाहों से सबको देखा था। वो अपने थके हुए बुखार ज़दा जिस्म को बमुश्किल घसीटते हुए चल रहा था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था इसे। ऐसा नाराज़ हुई थी कि कहीं कोई पता, कोई निशान न छोड़ा था। किसी ने बाहर आते जाते नहीं देखा था। किसी सड़क पर, किसी जाने अनजाने घर में। कहाँ चली गई तुम? मुझ पर एतबार नहीं किया। मैं तुम्हें पाक दामन साबित करके रहता, सारे इल्ज़ाम धो डालता। जब अपना आप शीशे की तरह हो, शफ़ाफ, और फिर ऐसी मैल और ऐसे दाग कहाँ बाकी रह जाते हैं। तुमने बहुत जल्दी हौसला हार दिया। लालियों के जोड़े ने शोर मचा रखा था। चमकदार नीले अंडों का खौल नीचे फर्श पे पड़ा था और उनका नौज़ायदा बच्चा खुराक के लिए जर्द चोंच खोले बेताबी से चिल्ला रहा था। और वो यहाँ खड़ी होती थी, अक्सर ही सर उठाकर इन लालियों को देखती थी और अपने घर के बरामदे में शोर मचाती चिड़ियों को याद किया करती थी। इसने अपने करीब आते सलमान हफीज़ को देखकर कहा था, चिड़ियाँ? कौन सी चिड़ियाँ? जो इसके आने के बाद खुशकाब खोरों और भूख से हार कर किसी और देश में जा बसी, घर आंगन सोना कर गई। वो दोनों हाथों में सर दिए सिसक रहे थे। मैं एक नाकाम बाप था। मैं इसकी माँ के बाद इसकी हिफाजत नहीं कर सका। मैं इन लालियों की तरह अपनी बेटी के लिए वफाशार ना हो सका। सलमान हफीज़ को पछतावे को जो सांप डसता था वो दो मुँहा था, जो एक तरफ से उनकी गफलत और कोताही पर डसता था और दूसरी तरफ से इस जुल्म पर डसता था जो लोगों ने इस पर किए थे। तभी कोई कागज़ हवा के ज़ोर से उड़ता हुआ रेयान जहांगीर के कदमों से आन लिपटा था। राइटिंग पैड का सफ़ा था। रेयान जहांगीर ने झुककर सफ़ा उठाया। तुम जो होते तो ज़िंदगी हमसे, तल्ख लहजे में बात करती क्यों? बारिश के पानी में भीगा फैली हुई रोशनाई में लिखा शेर। इसने कागज़ मरोड़ कर परे फेंका और ज़ेरे लब शेर दोहराने लगा। तुम जो होते तो ज़िंदगी हमसे, तल्ख लहजे। चंद कदम के फासले पर एक और कागज़ था, दोहरा मुड़ा हुआ, यूं जैसे हवा चली फिर बारिश का झोंका आ गया। इसने बस यूं ही बेख्तियारी में कागज़ एहतियात से उठाया था। ये दुनिया अच्छी नहीं है, मुझे अपने पास बुला ले अम्मा। ये कैसी तहरीर थी?
वो बुरी तरह चौंका, सर उठाकर देखा। किसी कमरे की खिड़की नहीं खुली थी जो वो समझता कि कागजात किसी पलंदे की सूरत गिरे और यहाँ वहाँ बिखर गए थे। और ये तहरीर सानिया के सिवा किसकी हो सकती है? कब लिखा इसने ये? और लिखकर उड़ा दिया क्यों? बेख्तियार कई कदम चला था। यहाँ मज़ीद एक कागज़ मौजूद था, लेकिन अब क्या वो रुका नहीं? इसकी छठी हिस्स इसे कुछ बता रही थी। भागकर सर्वेंट क्वार्टर के साथ बने स्टोर रूम तक पहुँचा था। सर्वेंट क्वार्टर्स में फ़िलहाल कोई मुलाजिम ना रह रहा था और स्टोर रूम चारों तरफ देखता हुआ लपका, फिर ठिठक कर रुक गया। यहाँ बेशुमार कागजात बिखरे हुए थे। एक के बाद दूसरा खोलता चला गया। मैं ऐसी नहीं हूँ अब्बा। हर कागज़ पर एक ही जुमला। उसने सर उठाया। स्टोर के आखिरी कोने में गुलाबी रंग की हल्की सी झलक दिखाई दी थी। तानिया, तानिया! हलक के बल चीखता सामान पर से गिरता पड़ता आखिरी कोने तक पहुंचा था। तानिया! इसने अपने दिल को बेकाबू होते महसूस किया था। सफ़ेद चेहरा, बंद आंखें, नीले होंठ। वो जिंदा थी या मुर्दा? रेयान जहांगीर तखसीस नहीं कर सका था। कुछ लोग बहुत नाप तोल कर कदम रखते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, नज़रों से फासला नाप लेते हैं, तासुरात से इरादे भांप लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी को नहायत खुद एतमादी से जीते हैं। और कुछ लोग सानिया जैसे होते हैं जो तितलियों के पर जमा करते करते हाथों में कांटे चुभो लेते हैं, जो उनों के पीछे भागते भागते देखते ही नहीं कि पाँव किसी खाई में जा पड़ा है, और बादलों के साथ उड़ान भरने की चाह में कदम ज़मीन भी छोड़ देते हैं। और यही वो लोग होते हैं जिन पर ज़िंदगी तो तरस खा लेती है, इंसान तरस नहीं खाते। मैं अपनी बेटी को वापस लेकर जा रहा हूँ। जो कोताही मुझसे सरजद हुई, इसकी माफ़ी खुदा जाने मिलेगी या नहीं, लेकिन मेरी बेटी को दोबारा ज़िंदगी मिली है और मैं नहीं चाहता कि दूसरी ज़िंदगी में ये दुखों की फसल काटे। अब ये मेरे साथ रहेगी जब तक इसके नसीब में अगले घर जाना नहीं लिखा। मेरे घर में मेरी बच्ची अपने तमाम तर हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। सलमान हफीज़ तानिया को बाजू के हल्के में लिए सीने से लगाए बैठे थे। यही मुनासिब है। अनाया खातून मजबूरन बैठी थी, वरना सच तो ये था वो इन बाप बेटी को आंख भर कर देखना भी नहीं चाहती थी। दिल में गम और गुस्सा था तानिया के लिए। वो छटांग भर की लड़की रात भर स्टोर रूम में छुप कर सबके सामने मजलूम बनी जा रही है। जो करतूत दिखा रही थी वो तो किसी को याद तक नहीं। हमारे लिए क्या हुक्म है? कब तक आएँ अपनी अमानत को लेने? जहांगीर साहब ने माहौल खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश की थी। अभी क्या कह सकता हूँ? आप हमारे गरीब खाने पर आइए, चाहत है तो सवाल डालिए, फिर देखते हैं जो अल्लाह की रज़ा। अनाया खातून ने अब्बा को फ़ोन कर दिया था। मैं क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है। वो कांटे की नोक पर खड़ी थी इस रात, और कुछ सुझाई न दिया तो राइटिंग पैड और कलम लेकर बाहर निकल आई। अब्बा बहुत गुस्से में आएंगे, आते ही गला दबा देंगे। मेरी बात सुनने का हौसला कहाँ होगा उनमें। इसे अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हो रहे थे। ख़त लिखती हूँ, सब बता दूँगी उन्हें, खुद सामने नहीं आऊँगी। वो डरी सहमी सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ियों पर आ बैठी थी, बल्ब के ऐन नीचे, जहाँ पतंगे जल जल मरते और इस पर बरस रहे थे। इसने कलम की नोक कागज़ पर रखी। बेतरीका लोगों को कलम संभालने का हुनर भी कहाँ आता है। कहाँ से शुरू करूँ, क्या लिखूँ, कैसे कहूँ? थक कर रो दी थी, कितने सफ़े फाड़ दिए। एक से ज़्यादा जुमला लिखा ही ना क्या। अब्बा मैं ऐसी नहीं जैसे आपने समझा, जैसे अनाया खातून ने समझा, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। वो जो सोचती थी आंखों के रास्ते बह निकलता था, फिर कागज़ पे क्या ठहरता। इसने कागज़ कलम सब फेंक दिया। छुपने के लिए स्टोर रूम से बेहतर जगह और कोई ना लगी थी। अब्बा वापस चले जाएंगे तब बाहर निकलूँगी। अपनी दानिस्त में बहुत समझदारी का फ़ैसला किया था। और फिर वो रात स्टोर रूम में गुजरी, इस कदर भयानक रात जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। उस रात स्टोर रूम के बाहर अम्मा थीं, सफ़ेद कफन ओढ़े, उनसे परे खावर था, सुर्ख आँखों के साथ। अब्बा थे, जिनकी आँखों का तासुर बारिश में भीगी कटीली हवा से ज़्यादा सर्द था। स्टोर रूम के दरवाजे पर चमकती दो आँखें थीं जो इसे बेतरह घूर रही थीं। क्या था वो? कोई खूंखार बिल्ली, कोई कुत्ता? इसे अपनी नब्ज़ डूबती हुई खुद भी महसूस हुई थी। और जब इसने अस्पताल के इस कमरे में आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। अब्बा इसका हाथ थामे हिचकियों से रो रहे थे। वो टुकर टुकर उन्हें देखे गई।
एक बार मिट्टी या रेत का घरौंदा होता तो जितनी बार भी करता मैं रोज़ तामीर कर लेती, पर एक बार तो कांच का काबा निकला। इसे दोबारा जोड़ने में मेरी तो उंगलियां फिकार हो गई। अब्बा अब्बा के सामने यूं पहली बार फूट फूट कर रोई थी। अनाया खातून सर झुकाए खड़ी थी और रेयान जहांगीर के चेहरे पे जो तफक्कुरात के बादल थे, इनमें से कतरा कतरा बहता दुख सिर्फ और सिर्फ तानिया सलमान के लिए था। ये लड़की बहुत कमज़ोर और मासूम है। ज़िंदगी के पुरखार रास्तों में इसे साथ लेकर चलना होगा, वरना पता नहीं कब और कहाँ कांटों में दामन उलझा ले। वो धूप में पाँव पसारे बैठा था, यूं जैसे बहुत फुर्सत में हो। इसने तानिया सलमान को घर से निकलते फिर गाड़ी में बैठते देखकर सोचा था, बहुत मजबूत लोग अगर कमज़ोर लोगों का हाथ थाम लें तो ज़िंदगी में तवाज़ुन आ जाता है, और ये ज़िंदगी तो बचाई ही मैंने है, सो मेरी ही अमानत है। वो खुलकर मुस्कुराया था। बादल छट गए थे। बाहर का हर रंग धूप में पहले से ज़्यादा गहरा और चमकदार था। वो गुनगुनाते हुए उठ गया। इसे इस सारे रंग चुराने थे, इस लड़की के लिए जिसकी ज़िंदगी से रेयान जहांगीर की सारी खुशियाँ जुड़ी थीं और जिसके पुरखार शब व रोज़ पे बाहर आने को थी। सत शुक्र कि अल्लाह ताला ने तकदीर लिखने का काम किसी इंसान के स्पुर्द नहीं किया। इसने अनाया खातून के कमरे की खिड़की को बंद होते देखकर सोचा, फिर सीटी बजाता अपने घर की तरफ चल दिया। अल्लाह हाफिज़।